ए नबी मुकर्रम, आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह है जो यकता है। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह और सब पर फायक है। न उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है, और ना ही उसका कोई हमसर है। Okay. I am Dr. Usman Bashir, currently working as a professor of physiology at CMH Multan Institute of Medical Sciences. And inshallah, today we are going to discuss overview of physiology of respiration. Okay. So these सर are अपना the माइक प्लीज ठीक कर लें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके जी अब कुछ बेहतर हुई है जी। कैन यू हियर मी नाउ? So somewhat better than before. सर अभी भी कम है, लेक्चर सुनने जैसी नहीं है। मैक्सिमम मैडम मैंने इसमें इसको किया है अब जी। अब कुछ बेहतर हो गई है, आवाज आ रही है जी सबको? थोड़ा सा माइक करीब कर ले आई थी। जी माइक मैंने करीब किया, वॉल्यूम मैक्सिमम करीब कर लिया जी। तो ये टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लेंगे ओवरव्यू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसके बाद हम डिफरेंट जो लंग प्रेशर्स हैं वी विल गोइंग टू डिस्कस दोज प्रेशर्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट in causing inspiration as well as expiration. Then subsequently we will discuss the mechanics of breathing, that is the mechanism which causes inspiration and expiration. Then we will move on to the concept of compliance, surfactant, work of breathing, resistance in the airways, and pulmonary volumes and capacities. And inshallah then we will discuss about dead space, concept of pulmonary circulation, ventilation perfusion ratio, respiratory membrane, and transport of various gases in the blood, which are important in respiration. Lastly, we will talk about regulation of respiration under different circumstances. Okay. So first of all, as you can see here in this figure, we can have an overview of the respiratory tract. What is upper respiratory tract? आमतौर पर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि जी upper respiratory tract infection and lower respiratory tract infection. So what is meant by upper respiratory tract? Can anybody answer? Any participant? Can the participants unmute themselves? Yes, sir. The area above larynx is upper and below it is lower respiratory tract. Yes, thank you. Actually, upper respiratory tract, it starts from entrance, that is nose, and it extends up to trachea. Sorry, larynx. From entrance to larynx. This is upper respiratory tract, and then the lower respiratory tract, it starts from trachea. Trachea, then up to the level of alveoli. So this is all lower respiratory tract. But mind it that this is, as you all know, this is anatomical division. Okay. Now we will talk about the physiological division. But first, let me tell you that trachea, as you know, it divides again and again and again. It forms bronchi, like right and left bronchi. Then they divide and form secondary bronchi. They further divide and form tertiary bronchi. They form bronchioles, and lastly, in this division, we have terminal bronchioles. Okay. Then terminal bronchioles further divide and they form respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles, they divide and branch into alveolar ducts, which lead to the alveoli, which are the gas exchange portion, the actual gas exchange portions. Now, what I mean to say is that this all, which is formed by the division of trachea, plus the upper respiratory tract. Okay.
This is the conducting portion or conductive portion. Okay, this is all upper respiratory tract plus this part of the lower respiratory tract up to the level of terminal bronchioles. This is called conducting portion or conductive portion. Then this lower one, that is the respiratory bronchioles, alveolar ducts, and alveoli. This is the exchange portion. But in this exchange portion, also the major is site of exchange of gases, as you all know, is alveolus, or plural is alveoli. Now we know that this portion serves for the exchange of gases. But then, what is the purpose of this portion, conducting portion? One function is evident from their name, that they conduct respiratory gases, oxygen from outside to inside and carbon dioxide from lungs to the atmosphere. But is there any other function which is being served by this portion? Anyone? First line of defense. Yes, very good. They provide the first line of defense against various pathogens or microbes which are present in the environment. They cause filtration. This portion, various components of this portion, they cause filtration. Any other function besides filtration and defense? Humidification. Humidification, yes. So this portion plus upper respiratory tract from lower respiratory tract, it starts from trachea, this divides again and again and again, and up to the level of alveoli, this respiratory tract has divided about 24 times. ये बात MCQs में पूछ ली जाती है, anatomy के हवाले से, physiology के हवाले से, कितनी divisions होती हैं टोटल up to the level of alveolus, 24 divisions होती हैं. कंडक्टिंग जोन की हम बात कर रहे थे. कंडक्टिंग जोन जैसे आप लोगों ने बताया, सबसे पहले ये कंडीशनिंग ऑफ एयर में इंपॉर्टेंट है. दूसरा, लो रेजिस्टेंस पाथवे तो प्रोवाइड करता ही करता है, ठीक है, फॉर द पैसेज ऑफ एयर. इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथवे, ऐसा पाथवे जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेज इजीली जो है वहाँ टू एंड फ्रो मूव कर सकें. और एक और इसका जो फंक्शन है वो फोनेशन है, ठीक है. वोकल कार्ड, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी इसी कंडक्टिंग जोन से मैं वोकल कार्ड जो है प्रेजेंट. यहाँ पर एक वर्ड लिखा था कंडीशनिंग, ठीक है. ये कंडीशनिंग बेसिकली कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, ये वही है जो भी आपने बताया. इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. वार्मिंग एयर, ह्यूमिडिफाइंग एयर एंड फिल्टरिंग एयर. Okay, warming air up to body temperature 37 degrees centigrade, then of the air with water vapors until the inspired air becomes saturated with the water vapors, and then filtration or defense. So combined, these 3 functions combined, they are called as conditioning. We said that the air has been conditioned. So what if these functions are not performed? One is obvious from filtration, that if filtration of air is not, then the microbes can get entry into the so gross microbes and pathogens, they are removed by various mechanisms. I will tell you about 5 mechanisms which are there in the conducting portion, which causes filtration of the air. Then what is the function or significance of these 2 things? Sorry to interrupt, Dr. Usman. चैट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि वॉइस इज टू लो, वॉइस इज टू लो, वॉइस इज टू लो. आप चैट बॉक्स जरा देखें, उसके अंदर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल. आई थिंक हमारे एंड पर तो नहीं है सीपी. आप जरा अपने एंड पर देख लीजिएगा डॉक्टर उस्मान. मैंने मैडम यही है कि मैक्सिमम इसका वॉल्यूम कर लिया है, माइक का जो वॉल्यूम आ रहा है उसको मैक्सिमम इसको कर लिया हुआ है. अब यही है कि मैं थोड़ा सा लाउड फिर बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद उससे कुछ बेहतर हो जाए. शायद इसमें कोई इसके अलावा शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि इससे पहले कनेक्टिविटी का भी काफ़ी इशू रहा था, तकरीबन 10-15 मिनट कनेक्टिविटी भी नहीं हो रही थी. लेकिन अब जो है माइक का मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम जो है उसको किया है. मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा लाउड इसमें बोल सकूँ. जी, हम बात कर रहे थे कंडीशनिंग ऑफ एयर की, ठीक है. कंडीशनिंग ऑफ एयर जो है कुछ बेहतर हुई है जी पार्टिसिपेंट्स? जी सर, पहले से बेहतर हुई. Thank you very much. Okay. I recommend that please, if you can use earphones.
you can please use the earphones. It will be a little better than before. Okay. So we were talking about conditioning, and I told you that conditioning involves warming, humidifying, and filtration. And the significance of first two things, that is warming and humidification. So we were discussing about these. Basically, if air is not warmed or humidified, then exchange of gas will not be possible. Any other thing which can happen to the respiratory tract or lungs if these two functions are not performed? I want to ask from the participants. Anybody, please? Sorry sir, repeat करेंगे आपने क्या कहा है? If warming or humidification of air is not performed by the conducting portion, what consequences can happen? Sir, Of course, cold infection. yes, of course, the air will be cold, and if it is not humidified, this cold and dry air, it will literally erode the passageways. Cold and dry air, it will literally each and every part of the conducting portion, it will be eroded. Or then you can, obviously you all know that it will lead to the infections, various infections can happen. So this function is very important. This function of the conducting portion, warming air and humidifying air. Then I told you that third thing is filtration, and filtration is done through 5 mechanisms in our conducting portion. First of all, we have here in the nose, which cause filtration of the gross particles. Then the turbulence is caused by nasal concha or nasal turbinates. Okay, when air passes through the turbinates, the 3 turbinates you all know about, the superior, middle, and inferior turbinate. When the air passes through these turbinates or nasal concha, there is turbulence in the air, and due to this turbulence, some smaller particles, they fall down due to gravity. So gravity is another factor. Then there is mucociliary escalator. Mucociliary escalator as an escalator which is formed by the mucus and cilia, beating of cilia, and lastly alveolar macrophages, which cause filtration of the air. So this is the figure which shows us nasal turbinates or concha. 3 turbinates, and they perform all these functions. When the air passes through these turbinates, it is warmed up to 32 to 34 centigrade because this area is richly supplied by the blood vessels. It is humidified again due to presence of moisture and blood vessels up to about 98% water saturation, and it is filtered also because passing air through the, it can also come in the MCQs, that when air passes through the turbinates, there is turbulence in the air, and this turbulence it causes gravitational precipitation of the gross particles. So this structure is very important for causing conditioning of the air. Next, in this figure, we can see the mucociliary escalator. Okay, mucociliary escalator, and these are the epithelial cells in the respiratory passageways, and they all have cilia. Now, these cilia move in one direction. Okay, in one direction towards the pharynx. So those particles are trapped in the mucus, and then due to beating of these cilia, due to continuous beating of these cilia, they are expectorated out. The particle size which are trapped in this mucus, it ranges from 0.5 to 1 micron. 0.5 to 1 micron. Okay. So here we have finished one first topic, that is about the, we have taken an overview of the respiratory tract, and we have talked about its function. It consisted of 2 portions. First was the conducting portion, which included upper respiratory tract, plus the that part, the lower respiratory tract, up to the level of terminal bronchioles. And then the exchange portion, which consists of 3 things, respiratory bronchioles and alveolar ducts and alveolar sacs or alveoli. And this portion was concerned with the exchange of gases. Now the second thing is the various pressures. We will talk about various pressures which are very important in the lungs. Basically 3 pressures हैं हमारे lungs में जो बहुत important है हम कह सकते हैं.
सबसे पहला जो प्रेशर है, चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फिगर में शो क्या किया गया ना। ये जो चीज है ये आपकी थोरेसिक वॉल है, इसकी स्कीमेटिक स्केच, ठीक है। ये हमारा सारा जो है ये थोरेसिक वॉल को शो किया गया। ये पैराइटल प्लूरा है, ये विज़रल प्लूरा है। दोनों के दरम्यान में जो पोटेंशियल स्पेस है, ये सारी जो है ये आपकी प्लूरल सेट है, ये प्लूरल कैविटी है, ठीक है। और ये जो है आप पिंक में जो देख रहे हैं ये हमारी एल्वियोलस है, ठीक है, एल्वियोलस। तो ये इन्हीं को कॉरस्पॉन्ड करते हुए हमारे पास तीन प्रेशर हैं बेसिकली। एक प्रेशर प्लूरल कैविटी का, आप सबको पता है, प्लूरल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर इन द दिस enclosed space, potential space, pleural pressure. Then pressure in the alveoli, it is called alveolar pressure. Okay, pleural pressure, alveolar pressure, and the difference of these two pressures, alveolar pressure minus pleural pressure, it is called transpulmonary pressure or transmural pressure. Okay, difference of alveolar pressure and pleural pressure, this is called transpulmonary pressure. Okay, now the thing is that what are the values and functions of these pressure? This pleural pressure, it is subatmospheric. Okay, it is subatmospheric. Why it is subatmospheric? Because it is a potential space and there is efficient network of lymphatics here which continuously drain the fluid from here. So this in this enclosed space, as is the case with many enclosed spaces in the body, like joint space or space behind the sclera, the pressure is interstitial space. Potential spaces where pressure is subatmospheric. This is this pleural space and interstitial space. It is -4. -4. What does -4 mean? -4 millimeter of mercury. It is 4 millimeter of mercury less than the atmospheric pressure. You all know that atmospheric pressure here outside the body, it is about 760 millimeter of mercury. So this is 756. -4. In some books, it is written only -4. So what does -4 means? That is, it is 4 millimeters of mercury less than the atmospheric pressure. Okay. So this is the pressure in the pleural cavity. Then pressure in the alveoli, because all the alveoli, they communicate outside with the atmosphere. So pressure here is the same as pressure outside the lungs, when no air is moving in or out of the lungs. Outside भी 760 है, यहाँ भी 760 है. तो इसको फिर हम ले लेते हैं 760 minus 760 को 0 millimeter of mercury भी कहते हैं, when no air is moving in or out of the lungs. Okay, so 0 millimeter of mercury भी इसको हम लेते हैं alveolar pressure को, या 760 आप कह लें. थर्ड जो प्रेशर है उसे ट्रांसम्यूरल या ट्रांसपल्मोनरी कहते हैं. वो इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस है, एल्वियोलर प्रेशर का और प्लूरल प्रेशर. अब क्वेश्चन ये कि व्हाई वी आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट प्लूरल प्रेशर. एक्चुअली प्लूरल प्रेशर जो एक सक्शन प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, ये एक सक्शन इफेक्ट डाल के रखता है लंग्स पे. ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे सारे लंग्स के एल्वियोलर पड़े हैं, तो इसके ऊपर ये सक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इट कीप्स द लंग्स ओपन. ठीक है, ये लंग्स को ओपन स्टेट में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो नेगेटिव और सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कॉजेस द सक्शन प्रेशर ऑन द लंग्स. ठीक है, इसीलिए आपको समझ आ रही है जब हम बात करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स जब इसमें यहाँ पर कोई स्टैब वुंड हो या बुलेट इंजरी हो जाए, यहाँ से एयर आ जाए, तो ये पॉजिटिव जब हो जाता है प्रेशर, ठीक है, माइनस से ये पॉजिटिव में 0 और फिर पॉजिटिव में जब ये चला जाता है तो फिर ये लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं उसके बाद. ठीक है, और लंग्स को एक्सपेंशन में प्रॉब्लम होती है. अच्छा, फिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इन प्रेशर से क्या होता है. ठीक है, ये वही वाली फिगर है जो आपने अभी पिछली उसमें स्लाइड में देखी है, जिसमें ये जो है आपका प्लूरल प्रेशर ये -4 है और ये 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है एल्वियोलर प्रेशर. अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमें पता है कि जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड करती है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल. आप देखना चेस्ट कैविटी सारी की सारी एक्सपैंड की है. ठीक है, जब ये चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है तो ये जो पैराइटल प्लूरा है ये थोरैसिक केज के साथ ऊपर मूव कर जाती है. ये जो विज़रल प्लूरा है ये लंग्स के नीचे रह जाती है. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है.
ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज कर देगा, ये ऊपर चली गई, ये नीचे रह गई, इस जगह का वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। अब हमें बॉयज लॉ के मुताबिक होगा, जब किसी भी जगह का वॉल्यूम इंक्रीज करता है वहाँ प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर -4 से ये ड्यूरिंग इंस्पिरेशन -6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पर प्रेशर होगा। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जो है, द प्रेशर, प्लूरल प्रेशर विल बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, प्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बिकम्स मोर नेगेटिव। सो ये जो मोर नेगेटिव प्रेशर है ये लंग्स को फर्दर स्टक करता है। अब लंग्स जो है ये भी फिर एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, सो प्लूरल प्रेशर ना सिर्फ इट कीप्स द लंग्स ओपन in the resting state, but also during inspiration it causes expansion of the lungs। ठीक है, हम कह सकते हैं expansion of the lungs भी प्रोड्यूस करता है, एल्वेलाई सारी एक्सपैंड करती हैं। तो जब ये एल्वेलाई या लंग्स जो है, एल्वेलाई हम इसकी बात कर लेते हैं, जब ये एक्सपैंड करेंगी यहाँ भी वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जहां जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो यहाँ भी प्रेशर डिक्रीज करेगा। पहले कितना था 760, अब चला गया 759 पे। इसी को जैसे गाइडन में आप देखेंगे तो यहाँ इसको लिखा होता है और कुछ में -1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एल्वेओलर प्रेशर इट बिकम्स -1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नाउ यू नो कि वो -1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की जो वैल्यू थी वो कहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो जब यहाँ -1 है, बाहर जो है वही 760 है, तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ठीक है, आउटसाइड में और यहाँ पर लंग्स के अंदर ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, तो एयर जो है इट विल रश इनवर्ड। ठीक है, एयर विल रश इनवर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, अब वो एल्वेलाई के अंदर जो है वो एयर आ जाएगी। ये है इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म। फिर एक्सपिरेशन में क्या होता है, उसमें रिवर्स हो जाता है। एक्सपिरेशन में हमारा जो है इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, उनकी रिलैक्सेशन होती है। जो आपका थोरेसिक एज है इट रिक्वायर्स बैक। ठीक है, रिक्वायर करता है, उसकी वजह से लंग्स भी रिक्वायर करते हैं। अब जो उसकी वजह से ये जो आपका प्लूरल प्रेशर था ये वापस, ठीक है, -6 से वापस -4 पे आ गया। ठीक है, ये जो प्रेशर है एल्वेओलाई का साइज भी डिक्रीज हुआ क्योंकि सारा सिस्टम आपको कोलैप्स कर रहा है, सारा सिस्टम रिक्वायर कर रहा है। तो ये जो है आपका एल्वेओलाई का प्रेशर ये भी अब पहले -1 से, यहाँ -1 था, उसके बाद ये 0 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इनके 760 पे आएगा, फिर ये +1 पे चला गया। ठीक है, या 761 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब फिर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। बाहर कितना है 760, लंग्स के अंदर एल्वेओलाई के अंदर कितना है 761। ठीक है, तो +1 का आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो एयर है इट विल मूव, इट विल रश आउटवर्ड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ठीक है जी, प्रेशर्स की समझ आई आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स? मैं सर प्लीज फिर से बता दें। जी, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। कुछ प्रेशर्स का आपको आइडिया हुआ है कौन कौन से प्रेशर्स हैं? Yes, sir. प्लूरल Yes, sir. प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एल्वेओलर प्रेशर है, और इन दोनों का डिफरेंस है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर या ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ठीक है, फिर ये कि इनको होता क्या है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उसकी मैंने बात की। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर भी रिपीट करूंगा आगे चल के इसी चीज को, जैसे भी अभी पार्टिसिपेंट हमारे उन्होंने कहा। सर ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पे रिपीट करते हैं जो आपने प्रेशर चेंजेस बताए थे। बिल्कुल, मैं अभी इसको कर देता हूँ, दोबारा इसको देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास प्लूरल प्रेशर है, यहाँ पर हमारे पास एल्वेओलर प्रेशर है। प्लूरल प्रेशर जो है 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 है तो हमारे पास प्लूरल प्रेशर 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेस है। ठीक है, 756, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक, इट कीप्स द लंग्स ओपन, क्योंकि सक्शन प्रेशर है कि कीप्स द लंग्स ओपन, इस पे सक्शन इफेक्ट डाल रहा है लंग्स के ऊपर। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द लंग्स ओपन, ये जो प्लूरल प्रेशर है। ठीक है, ये जो आपका एल्वेओलर प्रेशर है ये तो इक्वल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है। सब्सिक्वेंटली हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक्सपैंड करती है। ठीक है, चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपैंड करती है, कर्सर को देखिएगा। ठीक है, एक्सपैंड करती है। ठीक है, इस प्लूरल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर यहाँ पर फर्दर डिक्रीज कर देता है। -4 यहाँ पे था, -6 मिलीमीटर मर्करी यहाँ पर हो गया। ठीक है,
इसकी वजह से जब यहाँ पर -6 हुआ तो ये फर्दर जो है, जो लंग्स हैं उनके ऊपर एक सक्शन इफेक्ट डालता है। जो नीचे लंग्स पड़े थे, एल्वियोलाई पड़े थे, अब एल्वियोलाई भी एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। जब एल्वियोलाई एक्सपैंड करते हैं तो वहां पर पहले प्रेशर कितना था, 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो हो जाएगा -1। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर 0 है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये बाहर जो कर्सर है इसका मतलब एटमॉस्फेयर है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, तो एयर विल रश इन, गॉट इट, ठीक है, एयर विल रश इन, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। एंड व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, रिवर्स विल हैपन, ठीक है। उसमें चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि थॉरैक्स जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है, उसके साथ लंग्स भी इनवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। सर बीच में आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ थोड़ा सा। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है आपका थोरैक्स जो है वो रिकॉइल करता है, ठीक है, इनवर्ड मूव करता है, उसकी वजह से वॉल्यूम जो है आपकी इस प्लूरल स्पेस का वो डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर इनवर्स रिलेशन है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर था -6, तो यहाँ पर फिर दोबारा वो -4 पे आ जाता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। अब इसकी वजह से जो एल्वियोलाई हैं, लंग्स के इनवर्ड मूव करने की वजह से, ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से ये जो एल्वियोलाई हैं इनका साइज भी डिक्रीज करता है। जब इनका साइज डिक्रीज करता है, इनका वॉल्यूम भी डिक्रीज करता है। जब इनका वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर था -1, यहाँ पर हो जाएगा +1, यानी कि 761, और बाहर वही है 760, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर 0, एयर विल मूव आउटवर्ड, ठीक है। इसी चीज को अब मैं ड्यूरिंग अभी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में इसी चीज को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, गाइटन का ग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर्स हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ये कैसे चेंज होते हैं। ये प्लूरल प्रेशर जो एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन -4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और गाइटन इसको -5 बोलता है, तो आपने इसे कंफ्यूज ना, कुछ बुक्स के अंदर -4 वैल्यू है, जो मॉडर्न हमारी बुक्स हैं फिजियोलॉजी की उसमें -4 है, तो गाइटन इसको -5 लेता है, इससे आपने कुछ इसमें मसला नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है -4 या -5 मिलीमीटर मर्करी से, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये मोर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, -6 तक जाता है, या अगर आपने -5 से स्टार्ट किया तो आप कह सकते हैं कि -7.5 तक जाता है। गाइटन इसको ऐसे लेता है, -5 से लेकर -7.5 मिलीमीटर मर्करी तक, ठीक है। इसके मोर नेगेटिव होने से लॉन्ग वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये लॉन्ग वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ पर 0 था और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वो 0.5 लीटर, यानी कि 500 ml, ठीक है, 500 ml एयर जो है वो रश इन करती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, आधा लीटर एयर, 500 ml या 0.5 लीटर एयर जो है इस प्रेशर के नेगेटिव होने से, और एल्वियोलर प्रेशर, ये एल्वियोलाई का प्रेशर, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी ये 0 था एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन, और ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये डिक्रीज होता हुआ -1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक गया, और उससे फिर आपके 500 ml एयर जो है लंग का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। यही वो टाइडल वॉल्यूम है जो हम ब्रीद इन करते हैं हर इंस्पिरेशन में। फिर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या हुआ, रिवर्स हो गया ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है, ये -6 था, उसके बाद ये लेस नेगेटिव हुआ, -4 पे दोबारा आ गया। इसकी वजह से एल्वियोलर प्रेशर जो है वो आपका राइज किया, जैसे हमने पहले बात की, यहाँ -1 था, यहाँ पर +1 पे चला गया, और +1 पे जब गया तो ग्रेडियंट क्रिएट होने से ये जो एयर है वही 500 ml एयर, ये लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया क्योंकि ये एक्सपायर हो गई, एयर मूव आउटवर्ड करके। ये इसी चीज की रेपुटेशन है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। बेसिक मैकेनिज्म जो है वो सारे का सारा यही है, सिर्फ इसमें हमने बात करनी है मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में कौन से मसल्स जो हैं वो इन सारी चीजों को कॉज करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में सिर्फ ये चीज आ जाती है कि हमें मसल्स का पता होना चाहिए। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल की अगर आप बात करें जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में भी इन्वॉल्व है, तो ये वाला है, ठीक, ये वाला मसल आपका जो डूम शेप्ड मसल, ठीक है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम जो है ये इंस्पिरेशन में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप सबको पता है कि ये डाउनवर्ड मूव करता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है डायाफ्राम फ्रेनिक नर्व से, तो ये मसल डाउनवर्ड मूव करता है, और इसके डाउनवर्ड मूव करने से हमारे जो इसके साथ ही जैसे हमने पहले बात की सारे मैकेनिक्स की, ये हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करता है और एयर यहाँ से मूव इन करती है। अच्छा,
इंस्पिरेशन की पहले बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंस्पिरेशन के मुतालिक ये है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंस्पिरेशन जो है ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रही है, एनर्जी इसमें हमारी जो है वो, इसमें हमारी एनर्जी लग रही है। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट होगा, इंपल्स आएगी रेस्पिरेटरी सेंटर से अलोंग द फ्रेनिक नर्व, और हमारा डायाफ्राम, और उसके साथ एक मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो कि रिब्स के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। ये कंट्रैक्ट करते हैं। मेजर मसल जो है वो डायाफ्राम है, और उसके साथ ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है। ये ये कंट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे कंट्रैक्ट। नाउ ड्यू टू देयर कंट्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। जब ये इंक्रीज करता है तो इससे हमारा, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमारा जो प्लूरल प्रेशर है, इसको इंट्राप्लूरल प्रेशर भी बोलते हैं, इट बिकम्स मोर नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर कितना था एट द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन, कितना था -4, और यहाँ पर जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो इसका प्लूरल स्पेस का प्रेशर वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया, और प्लूरल स्पेस का जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उसका प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज किया, मोर नेगेटिव हो गया, -6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले पिछली स्लाइड में बात की है, जब ये मोर नेगेटिव हुआ तो इसने मोर सक्शन इफेक्ट एक्सर्ट किया लंग्स के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गए हम, लंग्स के ऊपर, एल्वियोलाई के ऊपर मोर सक्शन इफेक्ट इसने एक्सर्ट किया, और लंग्स जो है हमारे एक्सपैंड हो गए, ठीक है। एल्वियोलाई एक्सपैंड कर गई। अब उससे क्या हुआ, एल्वियोलर प्रेशर, वही जैसे हमने पहले बात की थी, एल्वियोलर जिसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, आप में से कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज के दो नाम, एल्वियोलर प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इट बिकम्स नेगेटिव, पहले कितना था 0, अब कितना हो गया -1, ठीक है। -1 जब हुआ तो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर में और एल्वियोलाई में, तो एयर विल फ्लो इनटू द लंग्स। दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, डायाफ्राम के कंट्रैक्ट करने से। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, उनकी कंट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज करेगा तो हमारा जो प्लूरल प्रेशर है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। जब प्लूरल प्रेशर ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी कि -4 से -6 पे चला जाएगा, तो इट विल कॉज एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। लंग्स एक्सपैंड करेंगे, जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो एल्वियोलाई का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और एल्वियोलाई का वॉल्यूम इंक्रीज करने से उनका प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज करेगा, वो 0 से -1 हो जाएगा। जब -1 होगा तो एयर विल फ्लो इनटू द लंग्स। सो दिस इज द होल स्कीम, दिस इज द होल कंसेप्ट। इंस्पिरेशन से या मस्कुलर कंट्रैक्शन से जो है कैसे एयर जो है मूव इन करती है, और पर ब्रेथ कितनी एयर मूव करती है, अभी हमने ग्राफ में देखा है 500 ml, इसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ये दो मेजर मसल्स हैं, इस पे भी एमसीक्यू आ जाता है बात। तो मेजर मसल हमारे कौन कौन से, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो बाज़ बात एक्सेसरी मसल्स हमें यूज करने पड़ते हैं जब हमें ज्यादा एयर की जरूरत होती है, ठीक है। उस वक्त हम कुछ एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज करते हैं। वो कौन कौन से, 3S से हम उनको याद रख सकते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, सेरेटस इंटीरियर और स्केलेनी, ठीक है। ये 3S जो है, ये 3 मसल्स दे आर यूज्ड इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब ये डायाफ्राम और की कंट्रैक्शन से क्या होता है, ठीक है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये डूम शेप डायाफ्राम, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, तो ये नीचे मूव करेगा तो वर्टिकल डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा, चेस्ट कैविटी का वर्टिकल डायमीटर। आप इसकी डायरेक्शन से इसको रिलेट कर सकते हैं। डायाफ्राम जब नीचे मूव करेगा तो वर्टिकल डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा चेस्ट कैविटी का। और जब हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जो कि रिब्स में है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, तो हमारा कौन सा, हमारा सॉरी सर ट्रांसवर्स डायमीटर, जी, ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर, ठीक है, इसको लैटरल भी बोलते हैं। वो डायमीटर जो हमारे इंक्रीज करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज मसल्स, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इन दोनों की कंट्रैक्शन से पूरी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देता है। अब द क्वेश्चन इज दैट एक्सपिरेशन कैसे होती है। याद रखिएगा प्लीज, आप सबको पता ही होगा, माशाल्लाह आपने पहले ये कवर कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन है कि एक्सपिरेशन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है।
इसमें जस्ट जो मसल्स हैं आपके, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, जस्ट जो अभी कंट्रैक्ट किए थे, उनकी जस्ट रिलैक्सेशन से ये प्रोसेस अचीव होता है। ठीक है, जो मसल्स आपके थे इसके इंस्पिरेशन के, उनकी जस्ट रिलैक्सेशन से, यानी कि डायाफ्राम और आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये जस्ट इनकी रिलैक्सेशन होगी और उस रिलैक्सेशन से एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस नॉर्मली इन रेस्टिंग स्टेट। इन रेस्टिंग स्टेट, जैसे कि इस वक्त हम जो है हमारा ये प्रोसेस सारा ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो अब इसमें क्या होता है, वही वाली स्कीम की बात कर लेते हैं। वो जो मसल कंट्रैक्ट किए थे, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो कंट्रैक्ट किए थे, वो रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, रिलैक्स करने से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो पहले इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज करने से सबसे उसके साथ जो प्रेशर जुड़ा हुआ है, प्लूरल प्रेशर, ठीक है, प्लूरल प्रेशर जो पहले मोर नेगेटिव हो गया था, अब लेस नेगेटिव हो जाएगा। पहले -6 पे चला गया था इंस्पिरेशन में, अब दोबारा -4 पे आ जाएगा। ठीक है, प्लूरल प्रेशर विल बिकम लेस नेगेटिव। उससे क्या होगा, अब आपका जो लंग्स जो है वो अब वापस रिकॉइल करेंगे। ठीक है, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं कि रिकॉइल ऑफ द चेस्ट कैविटी और रिकॉइल ऑफ द लंग्स। ठीक है, लंग्स रिकॉइल करेंगे। जब लंग्स रिकॉइल करेंगे, एल्वियोलाई का साइज डिक्रीज करेगा। एल्वियोलाई का साइज डिक्रीज करने से उनके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। जैसे हमने पहले बात की थी, तो एल्वियोलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। इट विल राइज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन में कितना था, -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, +1 से एयर विल मूव आउट ऑफ द लंग्स। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। तो क्या जी, अब ये एक्सपिरेशन का प्रोसेस कभी कभी एक्टिव भी हो जाता है। और वो एक्टिव किस वक्त होता है, जब हम कोई एक्सरसाइज जैसे करते हैं या हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन की जरूरत होती है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज या जैसे कुछ आपकी जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं जैसे एस्मा है, उसके अंदर ये जो एक्सपिरेशन का प्रोसेस है ये एक्टिव हो जाता है। और उसमें फिर 2 मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो उन 2 मसल्स का नाम है एब्डोमिनल रेक्टाइल जो आपके हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, याद रखिएगा, इस हवाले से भी बात का एमसीक्यू आता है। इंस्पिरेशन में आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनकी डायरेक्शन इस तरह से है कि वो इंस्पिरेशन करते हैं, और एक्सपिरेशन में आपके इंटरनल इंटरकोस्टल है। ठीक है, एक्सपिरेशन में आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जिसकी कंट्रैक्शन से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज करता है। So this was all about mechanics of breathing. इंस्पिरेशन हम कैसे करते हैं, एक्सपिरेशन कैसे करते हैं। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन से होता है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज करता है और एयर जो है मूव इन करती है। एक्सपिरेशन इसका इसका जो अपोजिट है, उसमें जस्ट ये जो इंस्पिरेटरी मसल्स हैं इनकी रिलैक्सेशन हो जाती है। ठीक है, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं इनकी जस्ट उसकी क्या होगी, उनकी रिलैक्सेशन होगी। इसीलिए एक्सपिरेशन जो है एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कंप्लायंस की। ठीक है, कंप्लायंस और सर्फेक्टेंट जो हैं ये क्या चीजें हैं और उनका क्या रोल है हमारी रेस्पिरेशन के अंदर। तो एनीबॉडी, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या वर्ड आता है आपके जहन में कंप्लायंस से, व्हाट इज कंप्लायंस, एनीबॉडी? जी सर, किसी भी ऑर्गन की एबिलिटी या मतलब किसी भी चीज की एबिलिटी के वो कितना मतलब अपने जी मतलब सर चेंज कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं अंदर, कितना जी, एक्सपेंड हो सकता है, कितना रिलैक्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू तला, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कितना उसकी लूजली हम कह सकते हैं कि कंप्लायंस जो है इट इज लूजली एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स और डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स, और मोर प्रिसाइजली कि उसमें कितनी जो है वो चेंज आ सकती है। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कंप्लायंस जो है इट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स फॉर अ यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, जैसे भी मैंने बताया कि एक यूनिट चेंज अगर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में आए तो उससे लंग्स का वॉल्यूम कितना चेंज होता है। ठीक है, इसका फार्मूला अगर उसमें बात करें तो इट इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा P। कंप्लायंस C इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा P।
ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया कि इट इज अ मेजर ऑफ एक्सपेंसिबिलिटी और डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स, के प्रेशर की चेंज की वजह से, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की कि प्रेशर पहले चेंज होते हैं और उन प्रेशर्स के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो बेसिकली ये हम यही देख रहे हैं कि कितना प्रेशर चेंज होता है तो उसमें लंग्स में कितनी वॉल्यूम चेंज होती है, और वॉल्यूम चेंज क्या है, उसमें उसको एक्सपैंड करते हैं, डिस्टेंसिबल हो जाते हैं और एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लायंस तो हो गई आपकी एक्सपेंशन, ठीक है, लंग्स जो एक्सपैंड करें, इसका रिवर्स क्या है या इसकी अपोजिट फोर्स क्या है, वो है बेसिकली इलास्टेंस। ठीक है, सो कंप्लायंस और इलास्टेंस जो है ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। कंप्लायंस इज एक्सपेंसिबिलिटी एंड डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स, और इसका जो अपोजिट है वो है इलास्टेंस। ठीक है, यानी कि लंग्स जो रिकॉइल बैक करते हैं, वापस जो अपनी जगह पर आते हैं, वो है बेसिकली आपका इलास्टेंस। ठीक है, नॉर्मल जी माइक्रोफोन काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। कंप्लायंस की नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू जो है कंप्लायंस की बोथ लंग्स की वो है 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अगर प्रेशर चेंज आएगी तो उससे 200 ml जो लंग्स का वॉल्यूम है वो चेंज होता है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन ये उस सूरत में है कि सिर्फ अगर हम लंग्स की कंप्लायंस की बात करें आइसोलेटेड। नॉर्मली हमारे लंग्स जो हैं वो एक थोरैक्स सिस्टम के अंदर एनक्लोज्ड है, चेस्ट कैविटी के अंदर एनक्लोज्ड है, और इनकी जो एक्चुअल कंप्लायंस है लंग्स एंड थोरैक्स सिस्टम की अगर कंबाइंड की बात करें तो इट इज 1/2 ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द लंग्स लोन्स। ठीक है, इसका तकरीबन 1/2 कर लें, 200 जो थी लंग्स की लोन थी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी तकरीबन 110 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप कंबाइंड लंग्स एंड थोरैक्स सिस्टम कंबाइंड की अगर आप कंप्लायंस की बात करें तो इट इज हाफ ऑफ द कंप्लायंस ऑफ लंग्स अलोन। ठीक है, 110 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। Now this is the compliance diagram in which you can see that at the start of inspiration the pressure, pleural pressure is -4 millimeter of mercury. Then during inspiration it becomes more and more and more negative. It finally becomes -6 millimeter of mercury, and due to this pressure change the volume of lungs it increases from 0 millimeter of from 0 liter to about 0.5 liter, that is 500 ml. 0.5 liter or 500 ml air is inspired in each breath. Okay, so this is inspiratory compliance curve, and reverse happens during expiration. This is expiratory compliance curve in which the volume of lungs decreases. Now we just discussed about elastance. Okay, elastance, that is compliance is extension of lungs, the opposite is elastance, that is the ability of the lungs to recoil back. अब elastance के अंदर यानी कि लंग्स जो वापस अपनी जगह पर आते हैं या वो फोर्स जो कि कंप्लायंस को अपोज कर रही है, ठीक है, elastance, उसमें 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स elastance। ठीक है, वो कोई शेयर करेगा कि वो कौन से 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो कंप्लायंस को अपोज कर रहे हैं या इलास्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एनीबॉडी? सर थोरेसिक केज जी, अच्छा, थोरेसिक केज को हटा के अगर हम सिर्फ लंग्स की बात करें तो लंग्स में बेसिकली एक बहुत बड़ी फोर्स जो आपके पास है जो कि एक्सपेंशन को या कंप्लायंस को अपोज करती है, वो है सरफेस टेंशन। ठीक है ना, सरफेस टेंशन, ये हमारा एल्वुलस है। ठीक है, एल्वुलाई आपको पता है उसके अंदर एक फ्लूइड की एक लाइनिंग होती है। ठीक है, फ्लूइड लाइनिंग होती है जो कि एल्वुलाई को लाइन कर देती है। अब यहाँ पर एयर है सारी और यहाँ पर ये फ्लूइड है, वाटर मेनली है। यहाँ पर ये फ्लूइड एयर इंटरफेस बनती है या एयर वाटर इंटरफेस या फ्लूइड एयर इंटरफेस, इसकी सरफेस पे सरफेस टेंशन प्रेजेंट है। ठीक है, इस सरफेस टेंशन की वजह से
these all alveoli, they have tendency to collapse inward. ठीक है, they have tendency to collapse inward, अंदर की तरफ उसको आने की वो टेंडेंसी होती है, रिकॉइल करने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, so two-third of the elastance is due to this surface tension. ठीक है, which is present in all alveoli. elastance में जो two-third factor जो contribute करता है वो ये surface tension है, जो कि sorry, which is present at the fluid air interface. और 1/3 इस elastance में contribute करता है आपका elastic tissue जो lungs के अंदर. ठीक है, lungs की जो wall के अंदर जो elastic tissue है 1/3 वो contribute करता है, और उसमें जो मेजर है वो elastin and collagen fibers. ठीक है, elastin and collagen fibers. तो मेजर जो चीज आपकी जो इलास्टिक काज कर रही है वो है सरफेस टेंशन. अब इस सरफेस टेंशन को इन चेक रखने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, ये जो सरफेस टेंशन विच इज प्रेजेंट एट द फ्लूइड एयर इंटरफेस यहाँ पर जो प्रेजेंट है, इसको इन चेक रखने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक और मैकेनिज्म दिया है, और उसको आप सबको पता है क्या कहते हैं? सर्फैक्टेंट सर. जी, सर्फैक्टेंट. वेरी गुड. ठीक है ना, सर्फैक्टेंट. और वो जो सर्फैक्टेंट है इट इज सेक्रेटेड बाय टाइप 2 एल्वेओलर एपिथेलियल सेल्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. ठीक है, ये इन दोनों की अरेंजमेंट होती है. ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं इनके अंदर ये सर्फैक्टेंट का इनिशियल कंपोनेंट बनता है जिसे लैमिलर बॉडी कहते हैं. फिर ये एक्सोसाइटोज हो जाता है, फिर इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर इस लैमिलर बॉडी से ये सारे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, क्लोजली अरेंज कर लेते हैं. और ये जो सर्फेक्टेंट है जो इस फ्लूइड एयर इंटरफेस पे है, ये सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, सरफेस टेंशन ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सरफेस टेंशन को इन चेक रखता है. ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है सरफेस टेंशन को. हाँ ठीक जी, जस्ट टू चेक अभी तक का जो नॉलेज है कि हमने कितना गेन किया. ये आप दो लंग्स देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्लूरल प्रेशर है, वाई एक्सिस पे हमारे पास लंग वॉल्यूम है. वही कंप्लायंस डायग्राम है. ये जो लंग है ये सलाइन फील्ड है, ये लंग एयर फील्ड है. आपके ख्याल में इसमें से किसकी कंप्लायंस जो है वो ज्यादा होगी, सलाइन फील्ड की या एयर फील्ड की? सलाइन फील्ड. एयरफील्ड की सर. जी ठीक है, कोई जस्टिफाई करेंगे आप इसको, क्यों जो कह रहे हैं कि सलाइन फील्ड की कंप्लायंस ज्यादा है वो क्यों, कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको? जी, एनीवन? बात आपकी ठीक है सर, वॉल्यूम कम है इसका, इसके अंदर एयर की मींस कैपेबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी की गुंजाइश है. चलें, सही कह रहे हैं. अगर इसको हम अभी जो हमने नॉलेज गेन किया है कंप्लायंस का और उसका जो हमने फार्मूला देखा है उसकी अगर बात करें और सरफेस टेंशन की बात करें, तो यहाँ पर जो सलाइन फील्ड जो लंग है इसमें फ्लूइड एयर इंटरफेस नहीं है. ठीक है ना, सारे का सारा सलाइन से फील्ड है ना. तो फ्लूइड एयर इंटरफेस अभी जिसकी हमने बात की थी ये स्लाइड के अंदर, ये वाली जो फ्लूइड एयर इंटरफेस थी जिसपे सरफेस टेंशन प्रेजेंट थी वो इस लंग में नहीं है. ठीक है, तो सरफेस टेंशन नहीं है, इसको एक्सपैंड करना ज्यादा इजी है. ठीक है, फार्मूले से भी अगर आप देख लें डेल्टा वी और डेल्टा पी का फर्क अगर देखें तो यहाँ पर वो जो है कंप्लायंस आपको ज्यादा नजर आती है. ठीक है, और ये जो आपका एयर फील्ड लंग है जो नॉर्मल होता है इसमें वो फ्लूइड एयर इंटरफेस प्रेजेंट है, सरफेस टेंशन प्रेजेंट है, और सरफेस टेंशन जो है वो एक अपोजिंग फोर्स है जो कि कंप्लायंस को अपोज करती है. सो बाज़ इस पर भी एमसीक्यू आ जाता है कि एयर फील्ड लंग्स जो हैं उसमें एयर फ्लूइड इंटरफेस प्रेजेंट होती है, सरफेस टेंशन प्रेजेंट होती है, और सलाइन फील्ड में सरफेस टेंशन प्रेजेंट नहीं होती. सो प्रेशर्स दे रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड एयर फील्ड लंग्स, दे आर अबाउट 3 times more as those required to expand saline field lines. ठीक है, तो कंप्लायंस किसकी ज्यादा होगी, वो सलाइन फील्ड की ज्यादा होगी. Now, which factors affect lung compliance? This is very important. There are certain factors which increase lung compliance, and there are certain factors which decrease lung compliance. So, lung compliance. सॉरी सर, इंटरप्शन की लास्ट स्लाइड एक दफा डिस्प्ले कीजिएगा. जी, ये वाली ठीक है. थैंक यू सर. जी, जैसे अभी बात की थी कि जो सलाइन फील्ड लंग है उसके अंदर एयर फ्लूइड इंटरफेस प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको एक्सपैंड करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, उसमें सरफेस टेंशन नहीं होती.
एयर फील्ड लंग के अंदर सरफेस टेंशन प्रेजेंट होती है, उसको एक्सपैंड करना हमारे लिए मुश्किल होता सर एक बात बताएं, है। जी सर ये जो सलाइन फील्ड लंग्स आप कह रहे हैं कि इन्हें इन्फ्लेट करना आसान है, तो इन्फ्लेट आप किससे कर रहे हैं, एयर से ही या वो भी सलाइन से ही आप इन्फ्लेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी तो सलाइन है, हाँ तो एयर फ्लूइड हाँ, टेंशन तो यहाँ भी आएगी जब आप एयर से इन्फ्लेट करेंगे। नहीं उससे पहले की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल जिस हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता है सलाइन फील्ड लंग पर्पस तो हमारा कभी भी पर वो जो है वो सर्व नहीं करेगा, हमारा पर्पस तो गैसेस एक्सचेंज है, वो तो करेगा ही नहीं। पर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर इनमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट देने के लिए बात कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन को अगर ओमिट कर दिए तो रिलेटिवली कितना इफेक्ट होगा, ठीक है, प्रेशर्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो जस्ट एक आप समझ लें कि कंपैरिजन के लिए हम देख रहे हैं कि इसको एक्सपैंड करना और इसको एक्सपैंड करना 3 टाइम्स मोर आपको प्रेशर की जरूरत होगी, ठीक है। ये जस्ट प्रेशर की एक समझेंगे एक्सपेरिमेंटल या मेजरमेंट के हवाले से अगर बात करें कि हमें कितने ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है अगर सरफेस टेंशन को ओमिट कर दिया। जी प्लीज सादिया। सर मुझे ना प्लीज ये एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आपने चार्ट की फॉर्म में बना दिखाया ना, डिपिक्ट किया है कि लंग वॉल्यूम, ये रिलेशनशिप लंग वॉल्यूम चेंज एंड प्लूरल प्रेशर, ये जो अच्छा आपने डिपिक्ट किया प्लीज। अच्छा, ऐसा है कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको एंड पे अपनी ईमेल दूंगा, ठीक है, उस पर आप मेरे से थोड़ा कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। मैं आपको अपनी ईमेल दे दूंगा, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी मैं इंशाल्लाह आपको वो सारी क्यूरीज जो है उनको मैं आंसर करूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। आई हैव बीन गिवन 2 आवर्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक, और अब भी हम पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा शेड्यूल से। तो इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चन आपके जो है आप मुझे ईमेल से आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी ये है कि हमारा जो करंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि किस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं लंग कंपाउंड, तो वो एम्फाइजीमा है, ठीक है, एम्फाइजीमा और आपका एज, जैसे जैसे एज एडवांस करती है, ठीक है, ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिनमें लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज करती है। कैन एनीबॉडी टेल व्हाई इन एम्फाइजीमा एंड इन ओल्ड एज सर कंप्लायंस? इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है लंग की जी दोनों में। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका जैसे जैसे एज एडवांस करती है और इसी तरह एम्फाइजीमा में आपका जो अपोजिंग फोर्स थी, जो इलास्टिक टिश्यू था, इलास्टिन कोलेजन, उसका लॉस होता जाता है। तो जब अपोजिंग फोर्स या इलास्टिक टिश्यू का लॉस होगा तो जाहिर है कि कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज कर देगी। इसी तरह कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो लंग की कंप्लायंस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल कंडीशन इन विच द लंग हैज बिकम स्टिफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मेजर जो फैक्टर हमारे सेटअप में आ गया ट्यूबरकुलोसिस आ गई, लंग फाइब्रोसिस आ गया, एटिलेक्टेसिस। नो दीज ऑल फैक्टर्स के बाद का एक्सेप्शन वाला एमसीक्यू आ जाता है इसमें, तो एक उसमें ये दे देगा और बाकी ये वाले सारे कि इन सारे फैक्टर्स से लंग की कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज करती है। कंपोजिशन की अगर बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट की, तो मेजर इसमें 90% जो है वो फैट्स हैं, ठीक है। 90% हमारे सर्फेक्टेंट के अंदर फैट्स हैं, जिसमें से 62% जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डीपीपीसी है, डाई पॉमिटाइल फॉस्फेटिडाइलकोलिन। 5% इसमें ये बाकी 10% 13% खैर आप इसे इसमें कंसर्न नहीं, आप इतना याद रखें कि 90% जो है वो हमारे इसमें फैट्स हैं, जिसमें से मेजर जो है ये डीपीपीसी है। फैट्स के अलावा तकरीबन इसमें 2% कार्बोहाइड्रेट्स हैं और अबाउट 8% इसमें प्रोटीन्स हैं। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट constituents are DPPC and calcium ion. These are the most important constituents और मुझे हमारे सर्फेक्टेंट में है। तो यहाँ पर एक फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आ गया, ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज कर लें। LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो एंड IRDS। एनीवन? सर ये तो फीटस का रेशियो होती है सर, ये चेक करते हैं फॉर दी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो आप नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, विच शोज द मेच्योरिटी? तो 2.2:1 शायद। 2:1 एग्जैक्टली डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये 2:1 लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो अगर है तो ये इस रेशियो में हो तो ये मैच्योरिटी शो करती है 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे। अगर इससे कम हो तो फिर ये प्रॉपर इसकी जो है सिक्रीशन नहीं हुई सर्फेक्टेंट की, एंड वी मे हैव टू गिव जो है सर्फेक्टेंट आफ्टर बर्थ, ठीक है। और दूसरी चीज IRDS जो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास डिस्कस करना जरूरी है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो आप सबको जाहिर है कि काफी उसका आइडिया होगा, ठीक है। IRDS, infant respiratory distress syndrome. Effect of alveolar size
ठीक है, एल्वुलस का साइज ऑन द कोलैप्सिंग प्रेशर। अब ये जो है इसमें लॉ ऑफ लैप्लेस इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एल्वुलाई हैं, एक आप बड़ी एल्वुलस देख रहे हैं, एक छोटी एल्वुलस देख रहे हैं, और ये इनके ऊपर जो P है प्रेशर है, कोलैप्सिंग प्रेशर। नाउ लॉ ऑफ लैप्लेस आपको पता है, इट इज 2T/R, व्हिच P इज द प्रेशर, T इज सरफेस टेंशन एंड R इज रेडियस। ठीक है, R इज रेडियस। अब ये लार्ज एल्वुलस जो है इसका रेडियस 2 है, सरफेस टेंशन 3 है, सेम है। स्मॉल एल्वुलस में रेडियस उसका इससे हाफ है, रेडियस 1 है, इसका 2 था, इसका रेडियस 1, और सरफेस टेंशन जो है वो सेम है, 3 है। तो आपके ख्याल में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैप्लेस किस एल्वुलस पर कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगा? सर स्मॉल एल्वुलस। जी, वेरी गुड। क्यों, कितना होगा सर? उसमें? बिकॉज वो सर उसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो 2T/R है, तो जी P जी इज जी इनवर्सली इन रिलेशन विद द R। जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो कोलैप्सिंग प्रेशर अगर हम थोड़ा सा मैथ करें तो कोलैप्सिंग प्रेशर इस लार्ज एल्वुलस पे 3 है और स्मॉल एल्वुलस पे इट इज अबाउट 6। ठीक है, तो इसीलिए IRDS में जो प्रीमेच्योर इन्फेंट होता है, ठीक है, उसमें एक तो एल्वुलाई जो है वो स्मॉल है, दूसरा उन पे कोलैप्सिंग प्रेशर भी ज्यादा होता है। और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकली भी ऐसी है कि जब हमारी एक्सपिरेशन होती है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, तो जब एल्वुलाई का साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, एक्सपिरेशन में एल्वुलाई का साइज डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें कोलैप्सिंग प्रेशर इवन इंक्रीज कर जाता है और कोलैप्स का चांस ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। सर इसमें कोलैप्सिंग प्रेशर की वैल्यू कौन सा शो कर रहा है? ये P जो है, ये जो P है, ये जी जी, ये P जो है, जो हमने यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट किया था, ये बेसिकली कोलैप्सिंग प्रेशर है। ओके, तो प्लीज म्यूट कीजिएगा डॉक्टर सरेश, प्लीज माइक अपना म्यूट कीजिएगा, थैंक यू। in the absence of surfactant, ठीक है, in the absence of surfactant, smaller alveoli have much more tendency to collapse। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की, जैसे कि IRDS में होता है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है, तो जितना स्मॉल एल्वुलाई होगा उसका उतना ही चांस इंक्रीज कर देगा कोलैप्स का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी, अब जो आ गया है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बात बात ये भी आ सकता है कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग। वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या चीज है? बेसिकली इट इज द वर्क डन टू कॉज इंस्पिरेशन एट रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में क्योंकि हमारे सिर्फ इंस्पिरेटरी मसल जो है वो सिर्फ वर्क कर रहे हैं ना, इंस्पिरेटरी मसल सिर्फ वर्क कर रहे हैं, तो उस स्टेट में वर्क डन बाय आवर बॉडी टू कॉज इंस्पिरेशन। ठीक है, उसमें उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कंप्लायंस वर्क, टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क और एयर रेजिस्टेंस वर्क। इसमें जो लार्जेस्ट है वो कंप्लायंस वर्क है, विच इज डन अगेंस्ट द इलास्टेंस। ठीक है, जो उसको अपोज कर रही थी, कंप्लायंस को चीज अपोज कर रही थी, उसमें आपकी सरफेस टेंशन थी और इलास्टिक टिश्यू था, इलास्टिन एंड कोलेजन। इन चीजों को, इलास्टेंस को ओवरकम करने के लिए 65% ऑफ टोटल वर्क जो है वो इलास्टेंस के अगेंस्ट किया जाता है, कंप्लायंस काज करने के लिए, एक्सपेंशन काज करने के लिए। 28% वर्क जो है ये डन किया जाता है एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और 7% वर्क किया जाता है आपका, जिसके हम बोलते हैं टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। नाउ टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क क्या है? इट इज टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो चेस्ट वॉल स्ट्रक्चर्स हैं और लंग्स की जो विस्कोसिटी है ना, लंग्स की विस्कोसिटी कहां से आती है? जो इन इलास्टिक टिश्यू है ना, लंग्स के अंदर इन इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू कौन सा है? इलास्टिन एंड कोलेजन। जो इन इलास्टिक टिश्यू है उसको हम विस्कस टिश्यू बोलते हैं, उससे ये विस्कोसिटी आती है। इसको ओवरकम करने के लिए 7% वर्क। टोटल इनको कैलकुलेट करें, 65 प्लस 28 प्लस 7, ये इट मेक्स 100%। ठीक है, सो इन नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस टोटल एनर्जी जो है बॉडी की, उसका कितने परसेंट जो है हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग पे खर्च होता होगा आपके ख्याल में? एनीबॉडी? जैसे इस वक्त हम रेस्टिंग स्टेट में है, तो कितने परसेंट हमारी एनर्जी जो है इस वर्क ऑफ ब्रीदिंग को कॉज करने में लग रही है, इंस्पिरेशन में हमारी लग रही है? 95%। ये है जी तकरीबन 3 to 5%। ठीक है, 3 to 5% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी जो है हमारी, ये इस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, या जिसको प्रिसाइजली वर्क ऑफ इंस्पिरेशन कहना चाहिए, उसको ये कॉज करने में लग रही है। लेकिन ड्यूरिंग अगर आप फोर्सफुल कर रहे हैं एक्सपिरेशन, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन जैसे कि एक्सरसाइज है या आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो उसमें ये फिर परसेंटेज ज़ाहिर है कि इंक्रीज कर देते हैं। Now, before moving to the next topic, that is resistance to airflow in the airways. Sir, ठीक है?
जी जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज सर बताएं। काइंडली रिपीट कर दें कितने % एनर्जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था? जी जी 3 to 5% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी, ठीक है। 3 to 5% of total body energy it is consumed to cause work of breathing। अच्छा जी, यहाँ पर हम 5 टॉपिक्स तकरीबन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है रेजिस्टेंस के एयर वेज के अंदर रेजिस्टेंस जो है ये कितनी होती है, कहाँ कहाँ पर होती है और कौन कौन सी चीजें इसको कंट्रीब्यूट करती हैं, इसके ऊपर हम जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर तकरीबन 2 to 3 मिनट्स की मेरा ख्याल है यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। आप भी उसको अभी तक हमने जितना जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो फिर हम दोबारा रिज्यूम करते हैं और तकरीबन 2 मिनट्स के बाद 10:02 हुए हैं इस वक्त मेरे पास, 10:04 पे हम दोबारा रिज्यूम करते हैं और हम एयरवेज की रेजिस्टेंस की बात करेंगे। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मेरा ख्याल है कि हम रिज्यूम करें। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, अभी तक जो हमने रेस्पिरेशन का जितना भी डिस्कस किया है, क्या आपका फीडबैक है, समझ आ रहा है, आप लोग मेरे साथ हैं? जी पार्टिसिपेंट्स। समझ आ रहा है सर। Yes, मुझे sir. एक क्वेश्चन पूछना था कि जी इंस्पिरेशन आपको ज्यादा वर्क एनर्जी चाहिए होती है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चाहिए होती है, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो है आपका एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंस्पिरेशन में आपके जो मसल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, जबकि एक्सपिरेशन जो है उसमें जस्ट वो मसल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मसल्स रिलैक्स करते हैं इसलिए वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट में। लेकिन जाहिर है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है फिर वो एक्सपिरेशन में भी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें फिर आपको उसमें भी एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा जी, थोड़ी सी पेस जो है या मेरी स्पीड थोड़ी सी आपको शायद ज़्यादा लगी हो, लेकिन वो इसीलिए कि इतना जो हमारे पास टाइम है 2 आवर्स का, उसमें हम ये कंप्लीट कर सकें। और दूसरा बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिवीजन है,
क्योंकि आप लोग पहले सारा ये पढ़ चुके हैं, जस्ट आप लोगों की एक रिवीजन टाइप है, तो थोड़ा सा इसलिए शायद आपको पेस जो है वो ज़्यादा लग रही हो। ठीक है, अच्छा जी, एयरवेज में रेजिस्टेंस होती है। आपके ख्याल में जितने भी एयरवेज हैं, अभी हमने शुरू में ओवरव्यू भी लिया था, उनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट या एरिया होगा जहां पर रेजिस्टेंस जो है वो हाईएस्ट होगी? ठीक है, अगर टोटल जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो लो रेजिस्टेंस पैसेज भी है सारा, लेकिन जितनी भी उसकी रेजिस्टेंस है अगर वो 100% हो, तो उसमें से 90% रेजिस्टेंस आपके ख्याल में उन सारे एयरवेज में किस जगह पर होगी? एनीबॉडी? Terminal bronchioles में। Terminal bronchioles, naturally one thinks of terminal bronchioles or smallest bronchioles और इस तरह के स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये शायद आपके लिए सरप्राइजिंग हो। दिस थिंग 90% ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बड़ी मजेदार सी बात है कि इट इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। ठीक है, जो आपको सबसे बड़ा विंड पाइप नजर आ रहा है और उसका जो इनिशियल कंपोनेंट है, इनिशियल ब्रोक है, इसलिए उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे कम, सारे एरियाज में सबसे कम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ट्रेकिया का और इनिशियल ब्रोंकाई का है। इसलिए अगर टोटल जो रेजिस्टेंस है वो एयरवेज की, अगर वो 100% हो, तो उसमें से 90% जो है वो यहाँ पर रिजाइड कर रही है, ट्रेकिया में और इनिशियल ब्रोंकाई में। अच्छा, उससे आगे आ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ब्रोंक्यूल्स को अगर आप लें, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स में भी एक बंदा नेचुरली ये सोचता है कि उसमें जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स होंगे वहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई ना। दूसरी बात ये कि अमंग द ब्रोंक्यूल्स में भी 3 तरह के हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, लार्ज, इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद आ जाते हैं स्मॉल साइज। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पर होगी? ठीक है, नेचुरली यहाँ भी हम सोचते हैं कि स्मॉलेस्ट में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडियम साइज। जी एग्जैक्टली, मीडियम साइज ब्रोंकाई जो हैं उनमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है। स्मॉल साइज में इसलिए नहीं होती कि उनका साइज तो नो डाउट कम है, लेकिन वो उनका नंबर बहुत ज्यादा है। देयर आर अबाउट 65,000 पैरेलल स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स। सो पैरेलल सर्किट, आपने पढ़ा होगा पहले, सर्कुलेशन में भी शायद आपने देखा होगा कि जब भी पैरेलल सर्किट्स बनते हैं, ठीक है, तो सीरीज के बजाय 2 तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज एक पैरेलल। जब पैरेलल सर्किट्स बनते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास एयरवे जनरेशन है, वाई एक्सिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये आप देख रहे हैं मीडियम साइज ब्रोंकाई, ठीक है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मीडियम साइज जो ब्रोंकाई है या इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप फर्दर जनरेशन करते जाएंगे उनकी ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद रेस्पिरेटरी, उसमें एयरवे रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। तो ये भी अगेन एक एमसीक्यू पॉइंट है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो मीडियम साइज ब्रोंकाई है, इसलिए कि मीडियम साइज ब्रोंकाई जो है उनका नंबर जो है वो कम है। वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एयरवेज, ठीक है, दे अफेक्ट करते हैं एयरवे रेजिस्टेंस को। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है आपका, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट एजेंट्स आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन वगैरह। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका एयरवे रेडियस, ठीक है, उसका जो साइज है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द एयरवे रेजिस्टेंस। जनरली स्पीकिंग, स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ द एयरवे, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी चीज को हम इसको जो मैथमेटिकली हम पॉइसलीज लॉ से हम इसको देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, पॉइसलीज लॉ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ईटा एल डिवाइडेड बाय पाई रेडियस रेज्ड पावर 4। यहाँ ईटा क्या है? ये विस्कोसिटी है, एल जो है ये लेंथ ऑफ जो एयरवे है वो पाई कांस्टेंट आपको पता है, और आर जो है यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ द एयरवे। नाउ अगर इन दोनों को देखें तो इस पर क्या आपस में रिलेशन बनेगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस रेज्ड टू पावर 4। नाउ यही वाला जो है ये रेजिस्टेंस का आप कह लेंगे फार्मूला, यही वाला अप्लाई होता है आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर पे। ठीक है, जो भी क्लोज ट्यूब्स हैं, चाहे वो एयरवेज हैं या आपकी ब्लड की ट्यूब्स हैं या आप कह लेंगे ब्लड वेसल्स हैं। तो इसी वजह से इफ द रेडियस इट डिक्रीजेस बाय हाफ, जितना किसी एयरवे का रेडियस है अगर वो पहले से हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो उस एयरवे में कितनी इंक्रीज करेगी? सिंपल मैथ है, एनीवन? 1/16। जी, वो तकरीबन 16 टाइम्स इंक्रीज,
जी 16 बिल्कुल times. 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब एस्थमेटिक्स में या इनमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में जो इनके ऊपर अटैक होता है, जिसमें एयरवे जो है वो श्रिंक करते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो उससे किस कदर, हाउ मेनी टाइम्स द रेजिस्टेंस इन द एयरवेज इट इज इंक्रीज। एनीबॉडी, अगेन अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, why is it somewhat more difficult to breathe in a steam filled washroom or sauna, depending upon अभी जब ह्यूमिडिटी होती है ज्यादा। जी बिल्कुल, उसमें जो है आपका ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से स्टीम की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, सो अभी हमने फार्मूला देखा था ना, विस्कोसिटी, ठीक है, ईटा विस्कोसिटी, तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए आप ज्यादा देर स्टीम नहीं ले सकते थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद स्टीम देने के बाद रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज कर देती है। समरी इसकी देख लेते हैं। हमारे पास जो एजेंट्स हैं जो एयरवे के डायमीटर को अफेक्ट करते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स और ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स में जस्ट एक रिवीजन है, आप क्लिनिकल नॉलेज से आपको पता होगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, और ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, इसकी बहुत लंबी डिस्कशन, अब लेक्चर का स्कोप नहीं है। तो हाइपोकैप्निया, ठीक है, हाइपोकैप्निया, डिक्रीज PCO2, ये भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है। इसी तरह ब्रोंकोडायलेटर्स में अगर देखें तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये आपके जितने भी जो हैं ये साल्ब्यूटामोल वगैरह जो आपके ब्रोंकोडायलेटर्स, ये इनहेलर्स यूज होते हैं, ठीक है, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बाय बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो सर्कुलेटिंग है आपके, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसके अपोजिट फैक्टर्स, ठीक है, इसका अपोजिट फैक्टर क्या होगा, हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सिया। ठीक है, सो हाइपरकैप्निया, इंक्रीज PCO2 और हाइपोक्सिया, ये भी ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक, हाँ, नेक्स्ट है हमारे जी सर, एक दफा प्रीवियस स्लाइड दिखा दें, मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी ये वाली स्लाइड नहीं, इससे पिछले वाली सर, ये वाली, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली आप पूछ रहे थे जी डॉक्टर साहब। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, ये हो गया जी। ठीक, अब हम मूव करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की तरफ, जो आपके खासकर पार्ट 1 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, जो हम स्पायरोमीटर से इनको देखते हैं, इनमें से ज्यादातर को, ठीक है, उनका हम स्टेबल या ग्राफ से हम इसकी बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास अगेन टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास लंग वॉल्यूम है। सबसे पहली चीज आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है जी, टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रेथ। ठीक है, डाउनवर्ड जो है ये इंस्पिरेशन है, अपवर्ड जो एक्सपिरेशन है। ठीक है, तो ये है 500 ml। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर, हमने शुरू में भी देखा था, विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच ब्रेथ, ये है 500 ml। ठीक है, उसके बाद आपका है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, the volume of air which is inspired over and above the tidal volume। ठीक है, over and above tidal volume से ऊपर जितना मैक्सिमम आप इंस्पिरेशन कर सकते हैं, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इट इज अबाउट 3 लीटर 3000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, the volume of air which can be inspired with maximum inspiratory effort over and above the tidal volume। ठीक है, इसका जो रिवर्स है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम खत्म होने के बाद जो आप मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज 1100 ml। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, as the name indicates, this is the volume of air which always remains in the lungs। ठीक है, ये तकरीबन है जी आपका 1200 ml, 1.2 लीटर्स। ठीक है, is the volume of air which always remains in the lungs, residual volume। अब ये आपके 3 हो गए वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनका जो कॉम्बिनेशन है ना जी, उसको फिर हम कैपेसिटीज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी आती है वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जी
सर एक्सक्यूज मी सर, ये ग्राफ के लिहाज से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml लिखा हुआ है, ठीक है। जी 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 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 जी जी 1100। जी जी तो सर ज्यादा वॉल्यूम 3000 है। जी बिल्कुल बस सर ठीक है, ओके, जी जी। अच्छा जी, थैंक यू। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की तरफ आते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू करके, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रीथेड इन एट द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन जहां पर एंड हो रही, इसके बाद यहां से स्टार्ट करके जितना आप मैक्सिमम वॉल्यूम फिर इन कर सकते हैं, उसमें टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा 500 प्लस ये 3000, तो टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी आपकी 3500 ml, ठीक है। ये 3500 ml जो आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। इसके मुकाबले में दूसरी जो आ जाएगी आपकी वो है वाइटल कैपेसिटी से पहले मैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करूंगा, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसका अपोजिट, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका ये जो नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ लंग्स वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहता है, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स के अंदर जितना वॉल्यूम रहता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ये तकरीबन होती है इसमें आ जाता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम ने तो हर हाल में लंग्स के अंदर रहना ही रहना था, और उसके साथ ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसको आपने हर टाइडल वॉल्यूम के साथ आप एक्सपायर ना करते, ये तो आपने मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट के साथ इसको ब्रीथ आउट किया था ना। तो हर टाइडल वॉल्यूम के एंड पे लंग्स के अंदर जो टोटल वॉल्यूम रह जाता है जिसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपका रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 प्लस 1200 ml, ये 2300 ml जो है ये आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। फिर ये जो वाइटल कैपेसिटी जो आपको ज्यादातर जिससे आपको वास्ता पड़ा होगा, या इसको फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी VC या FVC भी बोलते हैं, ये इसमें आपकी फिर तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और फिर उसके साथ प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, टाइडल वॉल्यूम 500 और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, so it is about 4600 ml. This is your vital capacity. Define इसको ऐसे करेंगे, the maximum amount of air which can be expired, ये याद रखना है आपने, vital capacity जो है वॉल्यूम एक्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन है। The maximum amount of air which can be expired after first filling the lungs to their maximum capacity, ठीक है। The maximum amount of air which can be expired with maximum possible effort after first inspiring the lungs to the maximum, ठीक है। ये वाइटल कैपेसिटी। फिर इन सबको अगर आप जमा कर लें, वाइटल कैपेसिटी और उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम को कर लें, तो आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है तकरीबन 5800 ml या 6000 ml। सो दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका ग्राफ है गाइडलाइन में बना हुआ है, और भी डिफरेंट बुक्स के अंदर इसमें डिफरेंट वॉल्यूम्स, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम्स और फिर उनका कॉम्बिनेशन ये सर ये टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन से आ रहे हैं जी इसमें जी इसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या अगर सिर्फ वॉल्यूम से आप बात करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये चारों वॉल्यूम 3000, 500, 1100 एंड 1200, ठीक है। इन चारों को अगर आप जमा कर देंगे तो आपके पास ये टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो हमने वैल्यूज की बात की है, ये बात की है हमने अडल्ट मेल के अंदर 70 किलोग्राम अडल्ट मेल। फीमेल्स के अंदर यही वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो हैं दे आर अबाउट 20 to 25% लेस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो FEV1 FVC रेशियो है ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के अंदर, ठीक है। ये आप सबको पता है, ये एस्थमा COPD ये हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, और फाइब्रोसिस जो है ये एक रेस्ट्रिक्टिव डिजीज, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड, ठीक है। FVC का कितने परसेंट जो पोर्शन है, या वाइटल कैपेसिटी का कितने परसेंट पोर्शन जो है जो फर्स्ट सेकंड में एक्सपायर हो जाता है, जो बाहर एक्सपायर आउट होता है, उसको बोलते हैं
FeV1 फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। ये जो है ये नॉर्मली FVC का 80% होता है, ठीक है। तो इसीलिए FeV1 जो FVC रेशो है ये 80 डिवाइडेड बाय 100 ये तकरीबन 0.8 होती है नॉर्मली, ठीक है, FeV1 FVC रेशो। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में FeV1 बहुत ज्यादा रिड्यूस, वाइटल कैपेसिटी भी रिड्यूस, FeV1 FVC रेशो रिड्यूस, ठीक है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव डिजीज में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव डिजीज जैसे कि फाइब्रोसिस है उसमें FeV1 रिड्यूस, लेकिन FVC जो कि इसमें अगर फार्मूला देखें तो नीचे आती है, ये उसके मुकाबले में ज्यादा रिड्यूस। तो ये रेशो जो है ये या तो नॉर्मल रहती है रेस्ट्रिक्टिव डिजीज में या इंक्रीज कर जाती है उल्टा, ठीक है ना। तो नटशेल ये हुआ कि FeV1 FVC रेशो, इस पर भी MCQ आ जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में ये डिक्रीज करती है, और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है जैसे कि फाइब्रोसिस है उसमें या तो ये नॉर्मल रहेगी या फिर उसमें इंक्रीज कर जाएगी। डेड स्पेस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द इंस्पायर्ड एयर व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस में जो हिस्सा नहीं लेता, ये क्या होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग एयरवेज, ठीक है। जो कंडक्टिंग एयरवेज में आपका एयर का वॉल्यूम रह जाता है उसे हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो कंडक्टिंग एयरवेज में रह गया ये 150 ml है तकरीबन। फिर इसकी एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, वही एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो ऊपर हमने बात की थी 150 ml प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। तो नॉर्मली कोई एल्वियोलर डेड स्पेस होती है, नहीं होती। नॉर्मली सारी एल्वियोलाई जो फंक्शन कर रही होती है। सो नॉर्मली जो है आपकी एल्वियोलर डेड स्पेस जो वो 0 होती है। सो इसीलिए नॉर्मली आपकी जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है it is equal to the physiological dead space because this alveolar dead space is 0, but in diseased conditions, ठीक है, पैथोलॉजी में आपके पास नॉन फंक्शनिंग एल्वियोलाई भी होंगी, ठीक है। नॉन फंक्शनिंग एल्वियोलाई होंगी तो आपके पास एल्वियोलर डेड स्पेस आ जाएगी। तो जब इस एनाटॉमिकल डेड स्पेस में आप इसको एल्वियोलर डेड स्पेस जो कि डिजीज कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है, जब आप इसको इसमें करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इट विल इंक्रीज देन एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ जो बताया गया वो ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस वो इक्वल होता है। लेकिन डिजीज कंडीशंस में जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीज कर जाती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस से, क्योंकि उसमें एल्वियोलर डेड स्पेस भी उसमें होती है। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डेड स्पेस, yes, this is again important regarding now there are certain factors which increase dead space and there are certain factors which decrease the dead space. Number one factor is age. With advancing age the dead space slightly increases, ठीक है। Standing also increases dead space. Deep inspiration and when a person breathes through a long tube, कब होती है लॉन्ग से हम ब्रीथ करते हैं एनेस्थीसिया में, वो ट्यूब, ठीक है, उसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इनमें डेड स्पेस या वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि गैसियस एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो इंक्रीज कर देता है। एज, स्टैंडिंग, डीप इंस्पिरेशन एंड व्हेन पर्सन ब्रीथ्स थ्रू लॉन्ग ट्यूब। फैक्टर्स व्हिच डिक्रीज डेड स्पेस, इसमें एक सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है वो ट्रिकोस्टमी, ठीक है। ट्रिकोस्टमी आपने ऊपर वाला ट्रिक जो इसको बाईपास कर दिया, यहाँ पर आपने होल बनाया, तो ट्रिकोस्टमी में डेड स्पेस जो है वो डिक्रीज करता है। डेड स्पेस का फंक्शन क्या है पहले हम बात कर चुके हैं, ये आपकी कंडीशनिंग ऑफ एयर में एक तरह से इन्वॉल्व। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में कि डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स का क्या इफेक्ट है एल्वियोलर वेंटिलेशन पे, ठीक। हमारा नॉर्मल टाइटल वॉल्यूम पहले हम 12 बात कर चुके हैं, 500 ml पर ब्रेथ है। रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रेथ्स पर मिनट है। डेड स्पेस हमारी 150 ml है। तो हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन जो नेट टोटल अमाउंट ऑफ एयर जा रही है मिलीलीटर पर मिनट, वो है तकरीबन, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें रेस्पिरेटरी रेट को टाइटल वॉल्यूम से, 12 मल्टीप्लाई बाय 500, ये है तकरीबन 6000 ml। लेकिन अगर हम इसमें से डेड स्पेस को माइनस कर दें और एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात करें, अब एल्वियोलर वेंटिलेशन की क्या है, अमाउंट ऑफ न्यू एयर विच इज रीचिंग द गैसियस एक्सचेंज पोर्शन, ठीक है। उसका फार्मूला है इट इज इक्वल टू
टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट या ब्रेथ ब्रीदिंग रेट, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम। इसकी अगर बात करें तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास है 500 माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम 150, 500 माइनस 150 350 आ गया आपके पास, 350 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये 4200 ml जो है इस 6000 में से जो नेट एयर है ये रीच करती है हमारे गैसियस एक्सचेंज पोर्शन एल्वियोलाई तक, ठीक है। टोटल कितना हमने किया 6000, उसमें से 4200 ml जो है वो उन पोर्शन तक पहुंची। डीप स्लो ब्रीदिंग में जब हम डीप स्लो ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, 1200 पे पहुंच जाता है, 500 से रेस्पिरेटरी रेट जो है डिक्रीज हो जाता है, 12 से 5 पे आ जाता है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन का कैलकुलेट कीजिएगा उतनी रहेगी, लेकिन जो नेट एयर पहुंच रही है ना एल्वियोलाई तक वो इंक्रीज कर जाती है डीप और स्लो ब्रीदिंग में। लेकिन अगर कोई रैपिड शैलो ब्रीदिंग करता है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है और यही एमसीक्यू में बात बता सकते हैं, रैपिड शैलो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट में भी 40 तक पहुंच गया उसका, ठीक है, 12 से 40 तक पहुंच गया, टाइडल वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर गया क्योंकि शैलो ब्रीथ कर रहा है, 500 से 150 हो गया, डेड स्पेस 150 है, ठीक है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन तो उतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्वियोलर वेंटिलेशन उसकी 0 पे चली गई। क्यों? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट 40 0। तो नटशेल मैसेज क्या मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि जब भी शैलो रैपिड ब्रीदिंग होती है तो अमाउंट ऑफ न्यू एयर जो रीच करना था एल्वियोलाई तक वो उल्टा 0 हो जाता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस हवाले से। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं जी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहली चीज 2-3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो हमारी हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड या अनऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। और हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में हमारी सिस्टेमिक वेन्स में होता है। तो याद रखिएगा कि पल्मोनरी जो हमारी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टेमिक वेन्स से मिलते जुलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टेमिक वेन से मिलते होंगे। कैसे? नंबर 1 वो थिन वॉल्ड होती हैं, जितनी सिस्टेमिक आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं उतनी थिक नहीं होती है, थिन वॉल्ड होती हैं। नंबर 2 ये वेन्स की तरह पल्मोनरी आर्टरीज हमारी डिस्टेंसिबल होती हैं, ठीक है, काफी डिस्टेंसिबल होती हैं। और नंबर 3 इनमें रेजिस्टेंस भी काफी कम होती है, जबकि सिस्टेमिक आर्टरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह चौथी चीज की तरफ अगर चले जाएं तो इनके जो प्रेशर हैं वो भी डिफरेंट है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपको पता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120 लेते हैं, डायस्टोलिक 80 लेते हैं, पल्स प्रेशर जो दोनों का डिफरेंस है 40 लेते हैं हम, मीन प्रेशर जो फार्मूले से है, ठीक है, पल्स प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर, ये इसका फार्मूला होता है मीन प्रेशर, पल्स प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर, ये 93, और कैपिलरी का प्रेशर तकरीबन 17.3 मिलीमीटर। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रेशर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से कितने फर्क है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में सिस्टोलिक प्रेशर 120 के बजाय यहाँ 25, डायस्टोलिक 80 के बजाय 8, पल्स प्रेशर यहाँ पर हमारा 17, दोनों का डिफरेंस है 25 माइनस 8 17, मीन प्रेशर यहाँ पर 15 आ जाएगा और एवरेज कैपिलरी प्रेशर 7 मिलीमीटर मर्क्यूरी। सो नटशेल ये कि ये एक लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर पाथवे प्रोवाइड करती हैं ताकि सारी जो कार्डियक आउटपुट है वो लंग्स में से गुजर के ऑक्सीजनेट होके आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाए। लो रेजिस्टेंस एंड लो प्रेशर सिस्टम। लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से जोन्स हैं वो 3 जोन्स हैं जो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से हैं, ठीक है, ग्रेविटी के स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जिस्ट करते हैं और ये इमेजिनरी जोन है। जोन 1 एपिसिस में है, ठीक है, जोन 1 ये इट इज जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो, जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो, बिकॉज इन दिस पोर्शन एल्वियोलर प्रेशर इट इज मोर देन द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। तो एल्वियोलर प्रेशर जब कैपिलरी प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो उसको ऑक्लूड कर देगा, इसलिए यहाँ पर जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो। जोन ऑफ ये जोन 2 ब्लड फ्लो, इसे कहते हैं जोन ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो। जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो जोन 1, जोन ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है। इसमें इंटरमिटेंट क्यों? ड्यूरिंग सिस्टली
ड्यूरिंग सिस्टली जब प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट से फोर्स आती है, तो उस वक्त जो कैपिलरी का प्रेशर इट एक्सीड्स द एल्वेओलर प्रेशर, बट ड्यूरिंग डायस्टली नहीं। ड्यूरिंग डायस्टली वो जो पीछे से एक्टिव प्रेशर नहीं आ रहा, तो उस वक्त जो है एल्वेओलर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग सिस्टली एल्वेओलर प्रेशर विल बी लेस देन द कैपिलरी प्रेशर। जोन ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, जोन 3 जो लंग की बेसिस में एग्जिस्ट करता है, इट इज कॉल्ड जोन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो। ठीक है, यहाँ ड्यूरिंग सिस्टली हो या डायस्टली हो, यहाँ पर कैपिलरी का प्रेशर एल्वेओलर प्रेशर से ज्यादा ही रहना है। ठीक है, तो जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो, जोन ऑफ इंटरमिटेंट blood flow occurs only during systole and zone of continuous blood flow. These all three zones are called zones of blood flow. These are due to effect of the gravity. Now the important, rather very important thing is that there is nothing like zone 1 blood flow. ठीक है, नॉर्मली जो है हमारे कोई ऐसा जोन नहीं होता जहां पर जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो हो। देयर आर ओनली 2 जोन्स ऑफ ब्लड फ्लो। एपिसिस में जोन 2 ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड फ्लो अकर्स ड्यूरिंग सिस्टली एंड एब्सेंट ड्यूरिंग डायस्टली। और मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है, मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स, वहां पर जोन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो है। ये मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जोन ऑफ 2 ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, जोन 2 ब्लड फ्लो या जोन ऑफ इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, और मिडल एंड लोअर पार्ट, ये सारे का सारा जो ज्यादा मेजर पोर्शन है लंग्स का, यहाँ पर जोन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो है। जोन 1 की बात नहीं की थी। जोन 1 इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, जोन ऑफ नो ब्लड फ्लो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में सिर्फ होता है। अच्छा जी, हाई अल्टीट्यूड हेप, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा क्या होता है? हाइपोक्सिया, आपको पता है हाइपोक्सिया जो हाई अल्टीट्यूड पे होता है। अब हाइपोक्सिया का इफेक्ट यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोक्सिया जो है सिस्टेमिक वेसल्स में क्या काज करता है? वेजोडाइलेशन या वेजोकंस्ट्रिक्शन? पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन। वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन वेजोडाइलेशन, जी बिल्कुल वेजोडाइलेशन है। सिस्टेमिक वेसल्स में हाइपोक्सिया जो है वेजोडाइलेशन काज करता है, लेकिन पल्मोनरी वेसल्स में ये जो हाइपोक्सिया है ये वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है। अब एक इसका बेनिफिट है और इसका हमारे पास नुकसान। ठीक है, बेनिफिट क्या है कि जब भी हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पर हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया से पल्मोनरी वेसल्स के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन से, अब जरा सुनिएगा गौर से, उस वेजोकंस्ट्रिक्शन से जो पोस्टुलेट किया जाता है वो ये होता है कि ब्लड, पल्मोनरी ब्लड लंग्स के उन एरियाज में शिफ्ट हो जाता है जहां पर बेटर वेंटिलेशन होती है। ठीक है, जिस एरिया में हाइपोक्सिया ज्यादा हो रहा है, लंग्स की जिन जगहों पर ज्यादा हाइपोक्सिया हो रहा है वहां पर वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी एंड इट विल सर्व टू डाइवर्ट द ब्लड फ्लो टू दोज एरियाज वेयर ऑक्सीजनेशन एंड वेयर इज वेंटिलेशन इज प्रॉपर, वेयर वेंटिलेशन इज प्रॉपर। ठीक है, तो इसका फायदा है। लेकिन अगर ये खास लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर जाए, हाइपोक्सिया, सीवियर हाइपोक्सिया हो जाए, तो इतनी वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है कि जिससे प्रेशर इतना ज्यादा एक्सीड कर जाता है कि उससे फिर पल्मोनरी एडिमा होता है। ठीक है, मैंने कहा था एक इसका फायदा है और एक इसका नुकसान है। इसी कहते हैं हेप, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, और इसके मुकाबले में एक हेस होता है, हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। उसका भी मैकेनिज्म इससे थोड़ा सा मिलता है। सर कैन यू रिपीट, सर जरा रिपीट कर दें। जी रिपीट मैं कर देता हूँ। ऐसा है कि हाई अल्टीट्यूड पे आपको पता है बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज करते हैं ना, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज करने से हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का इफेक्ट सिस्टेमिक वेसल्स पे और है, पल्मोनरी वेसल्स पे और है। सिस्टेमिक वेसल्स में हाइपोक्सिया वेजोडाइलेशन काज करता है, लेकिन हमारी पल्मोनरी वेसल्स में हाइपोक्सिया जो है वो सरप्राइजिंगली वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन अगर तो एक मुनासिब हद तक हो, माइल्ड हाइपोक्सिया हो, तो इस वेजोकंस्ट्रिक्शन से ब्लड फ्लो यहाँ से डाइवर्ट होके जिस एरिया में हाइपोक्सिया है वहां से बेटर वेंटिलेटेड एरियाज में चला जाता है, ऑक्सीजन रिच एरियाज में चला जाता है, और वेंटिलेशन इस तरह से वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो उसका फायदा है। लेकिन अगर हाइपोक्सिया सीवियर हो, ज्यादा हाइपोक्सिया हो, तो उससे आपका क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी ज्यादा हो जाती है, और इतनी ज्यादा वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है कि पल्मोनरी ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड प्रेशर जो है उससे फिर एडिमा हो सकता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो इसी से रिलेटेड है, इसकी बात कर लेते हैं। इट इज द रेशो बिटवीन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, एज द नेम इंडिकेट्स, परफ्यूजन मींस ब्लड फ्लो। ठीक है, नॉर्मली हमारी एल्वेलर वेंटिलेशन 4.2, अभी जो हमने बात की थी 4200 ml।
ठीक है ना। 4200 ml हमने बात की थी ना पीछे एल्वेलर वेंटिलेशन की, हमने इक्वेशन की बात की थी। तो 4200 एल्वेलर वेंटिलेशन 4.2 लीटर्स, और ब्लड फ्लो हमारा कार्डिक आउटपुट कितनी है 5.5। इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.8। अच्छा, एक मजे की आपको बात बताऊं याद रखने के लिए, पॉइंट लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी रेशो है ना, जनरली याद रख लें कि वो 0.8 ही आनी है। FPV1 ओवर FVC रेशो 0.8, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो 0.8, आगे एक रेशो आएगी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो 0.8। रट्टा आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है, इसमें कुछ डिफरेंसेस नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं एपेक्स में और बेस में, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लंग्स की एपेक्स हैं अपर साइड, वहां पर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे अभी हमने बात की, ब्लड फ्लो परफ्यूजन वहां पर लोएस्ट है, ठीक। वेंटिलेशन वहां पर कंपैरेटिवली लोअर है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की अगर बात कर लें तो वो हायर होगी, बेसिस के मुकाबले में हायर होगी, ठीक है। मे बी 3, यानी कि नॉर्मल वेंटिलेशन पूरे लंग्स की अगर बात करें तो 0.8, लेकिन एपिक्सिस पे कितनी 3 तक ये नॉर्मल है, ठीक है। 3 तक अगर इन दोनों की रेशियो की बात करें, क्यों, वहां पर जो आपका ब्लड फ्लो है वो बहुत कम है, वेंटिलेशन के मुकाबले में ज्यादा है, तो रेशियो जो है वो वहां पर हायर होगी, 3 तक हो सकती है। उसकी वजह से जो वहां पर रीजनल आर्टीरियल सैचुरेशन होती है ब्लड ऑक्सीजन की, आर्टीरियल PO2 वो हाईएस्ट है, वहां पर बेटर एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को बेटर होने से वहां पर PO2 वहां पर हाईएस्ट होती है, इसको छोड़ देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बेस की अगर बात करें तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वहां पर ब्लड फ्लो, जैसे भी हमने बात की, बेस पे हाईएस्ट होगा, परफ्यूजन मैक्सिमम होगी, वेंटिलेशन एपेक्स के मुकाबले में हायर होगी। इन दोनों की रेशो की बात करें तो वो एपेक्स के मुकाबले में कम होती है, यानी कि नटशेल ये कि एपेक्स पे हमारी V/Q रेशो हायर है, बेस पे हमारी V/Q रेशो लोअर है। ये सिर्फ 0.6 भी हो सकती है। अगेन पूरे लंग्स की याद रखिएगा 0.8, लेकिन अगर एपेक्स और बेस की अलग अलग से बात करें तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली एपेक्स पे 3 तक जा सकती है और बेस पे 0.6 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वो नॉर्मल रीजनल डिफरेंसेस हैं वेंटिलेशन और परफ्यूजन के, जो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आते हैं। कल भी अब जब आप जा रही थी आया हुआ था उस वक्त जो बुखार मेरा दर्द काइंडली म्यूट कीजिएगा डॉक्टर फरा, काइंडली म्यूट कीजिएगा। तो इसकी वजह से अब क्या होता है कि बेस के ऊपर हमारी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो लोएस्ट होती है, और उसकी वजह से जो PO2 है वो बेस पे वो भी लोएस्ट हो, इनके बेटर जो हमारा एक्सचेंज पोर्शन है वो अपर साइड पे आ जाती है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, लेकिन सर अगर एपेक्स और बेस की बात की जाए तो एपेक्स में आपने कहा कि वेंटिलेशन भी लो है और परफ्यूजन भी लो है, तो उसकी रेशो ज्यादा क्यों है? क्योंकि ब्लड फ्लो जो आपका V/Q है ना, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये इसके मुकाबले में ज्यादा कम है। मैथमेटिकली अगर आप देखें, वेंटिलेशन सिर्फ लोअर है, ये बहुत ज्यादा कम है। तो जब नीचे वाला मैथ्स में आपने देखा होगा फार्मूले में, जब नीचे वाली चीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उसका जो आंसर है वो भी जो है, सॉरी, वेंटिलेशन लोअर है, ब्लड फ्लो लोएस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके मुकाबले में ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर बेस में अगर हम परफ्यूजन को ले लेते हैं, ठीक है, परफ्यूजन को हम सिर्फ ले लेते हैं, तो बेस पे एपेक्स से ये परफ्यूजन बहुत ज्यादा है, V/Q है ना, ठीक है। सपोज वेंटिलेशन कम, यहाँ राइटिंग बोर्ड होना चाहिए था, चलो सर वेंटिलेशन कम छोड़ देते हैं, सिर्फ नीचे वाला Q की बात करते हैं, ठीक है। Q की अगर हम बात करें तो Q एक आप एपेक्स वाला ले लें और एक बेस वाला ले लें। एपेक्स वाला जो Q है वो कम है, बेस वाला Q ज्यादा है, ठीक है डॉक्टर रिदा, बेस वाला Q बहुत ज्यादा है। तो जब बेस वाला Q ज्यादा हो जाएगा तो एपेक्स के मुकाबले में वहां पर जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी बेस के ऊपर। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, अच्छा, अब हम दो ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि जिनमें अगर या वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाए या परफ्यूजन ब्लॉक हो जाए, ठीक है। वेंटिलेशन ब्लॉक हो सकती है, फॉर एग्जांपल पीस ऑफ स्टेक व्हिच इज कॉट इन द एयरवेज, ठीक है। उससे अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कंप्लीटली तो उससे क्या इफेक्ट होगा? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो नॉर्मली हमें पता है कि जब दोनों चीजें नॉर्मल आ रही है हमारे पास 0.8 है, ठीक है, 0.8 है। उस वक्त हमारे पास जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 104 या 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। CO2 का प्रेशर हमारे पास 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है,
और यही वाली वैल्यूज जो है हमारे पास ब्लड के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रेट कर जाती है गैस दोनों तरफ। ऑक्सीजन का भी आर्टीरियल ब्लड में ए जो है, ये ए कैपिटल जो है एल्वियोलर है, ए स्मॉल जो है ये आर्टीरियल ब्लड में है, ठीक है। तो आर्टीरियल ब्लड में भी ऑक्सीजन 100 उसके बराबर, और CO2 जो है वो भी उसके बराबर, CO2 जो है 40 मिलीलीटर। लेकिन अगर ये एयरवे ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो VA/Q रेशो क्या होगी? अब यहाँ पर वेंटिलेशन ऊपर वाला जो है या 0, नीचे परफ्यूजन हो रही है, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब 0 जब होगी तो उससे क्या होगा? अब आपके पास एल्वियोलर यहाँ पर ये ज़ाहिर है वो आ ही नहीं रही, एयर नहीं आ रही, ये भी खत्म, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्वियोलर में वो भी खत्म। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बात को पूछते हैं, अब जो वैल्यूज होंगी आर्टीरियल O2 की और CO2 की, दे विल रिजेंबल द वैल्यूज इन द वीनस ब्लड। आपको जो वीनस ब्लड है उसमें यही वाली वैल्यूज होती हैं, क्योंकि अब ब्लड आ रहा है और बस जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी ना। यहाँ से जो आ रहा था पल्मोनरी कैपिलरी के स्टार्ट से, वो वीनस ब्लड था ना, ठीक है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें O2, ठीक है, वो 40 ही रहेगा और CO2 46 ही रहेगी, अनचेंज रहेगी। दे विल रिजेंबल द वैल्यूज इन द मिक्स्ड वीनस ब्लड, ठीक। और इसी तरह अगर आप, अब वेंटिलेशन आ रही है, परफ्यूजन आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, ड्यू टू पल्मोनरी थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, ठीक है, पल्मोनरी थ्रोम्बस आ गया या एम्बोलस आ गया, ठीक है, वेंटिलेशन आ रही है, परफ्यूजन स्टॉप हो गई है, ठीक है, वेंटिलेशन है, परफ्यूजन नीचे वाला 0 हो गया, परफ्यूजन 0 हो गई है। तो जब भी आपको पता है इक्वेशन में नीचे वाला 0 हो जाए तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0 हो या इन्फिनिटी हो, विन गैस एक्सचेंज नहीं हो रही। नाउ द वैल्यूज जो आपकी यहाँ पर आ रही हैं, एयर जैसे आई थी वैसे की वैसे यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, दे विल रिजेंबल द वैल्यूज इन द इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वैल्यूज रिजेंबल द वैल्यूज इन द मिक्स्ड वीनस ब्लड, और जब आपका कैपिलरी ब्लॉकेज हो या ब्लड फ्लो परफ्यूजन की ब्लॉकेज हो तो दे रिजेंबल द वैल्यूज इन द जो आपका एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। एल्वियोलर ऑक्सीजन 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 147 कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ली जाती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जिससे एयर पास करके, ठीक है, आपके ये एल्वियोलाई और फिर ब्लड तक पहुंचती है। इसमें 6 इसमें होते हैं। सबसे पहले आप एयर वाली साइड से शुरू करें तो ये एल्वियोलस है, उसमें सबसे पहले ये फ्लूइड और सर्फेक्टेंट लेयर आ जाएगी, हमने शुरू में बात की थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा एपिथेलियम, ठीक है, एल्वियोलर एपिथेलियम आ जाएगी। थर्ड पे आपके पास ये इंटरस्टिशियम आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ में आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। फिफ्थ में आपके पास कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, और सिक्स में आपके पास कैपिलरी एंडोथेलियम आ गई, ठीक है। ये 6 स्ट्रक्चर जो है इनके अक्रॉस जो है ये डिफ्यूजन जो है ये गैसेस की जो है होती है, और ये बहुत थिन जो है ये मेम्ब्रेन है। इसको डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये नेचुरली आपको पता है जितनी ज्यादा ये मेम्ब्रेन थिक होगी उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज कम होगी। सो डिफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द थिकनेस। जितनी ज्यादा इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल किस तरह बढ़ सकती है, यहाँ पर फ्लूइड अकोमोडेट हो जाए पल्मोनरी एडीमा में या फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, तो ये थिकनेस इंक्रीज कर जाएगी, गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन कम हो जाएगी। सरफेस एरिया से क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। तीसरा है प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट, उसी प्रेशर ग्रेडियंट की ही वजह से बेसिकली डिफ्यूजन हो रही है। ऑक्सीजन इस तरफ से इस तरफ जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड साइड से एल्वियोलाई की साइड पर जा रही है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट ही सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैसेस को अगर हम देखें। फिर एक चीज है डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, इसको बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और फिर है टेम्परेचर आपके पास। तो टेम्परेचर जो है इसका भी एक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाती है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा। ग्रेडियंट्स की बात कर लेते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा डॉक्टर प्लीज कि आपका जो इंस्पायर्ड एयर में जो था, अभी हमने पीछे भी देखा कि वो 150 या 150 या 150 या 147 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डिफरेंट बुक्स में ये वैल्यू दी गई है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर जब ये एल्वियोलाई तक पहुंचा तो ये 104 तक रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इसमें फिर इसकी जो है ह्यूमिडिफिकेशन हुई है।
एयर की ह्यूमिडिफिकेशन हुई है, उस ह्यूमिडिफिकेशन से 47 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो वाटर प्रेशर होता है। तो 150 में से आप 47 माइनस कर दें तो बाकी कितना बच गया, 103 या तकरीबन 104 आप कह लें। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एल्वियोलाइज की साइड पे। इधर से जो वीनस ब्लड आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी के स्टार्ट पे, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 होता है, 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी पे भी हमने देखा। तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना हो गया, 104 माइनस 40। तो ऑक्सीजन रश करेगी एल्वियोलस से इस तरफ ब्लड की साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वीनस ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका प्रेशर कितना है, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। यहाँ पर एल्वियोलस में तकरीबन आप ले लेंगे वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, ग्रेडियंट कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस तरफ से फिर इस तरफ जो है रश करेगी। आप ग्रेडियंट देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट बहुत कम है, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। तो ऐसा बेसिकली इसलिए है कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है इस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस which diffuses across the respiratory membrane per minute per millimeter of mercury pressure difference। ऑक्सीजन का है ये 20 to 30 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट रेस्ट, जबकि एक्सरसाइज में ये तकरीबन 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी, 20 से 3 टाइम्स तकरीबन 60 या 65 मिलीमीटर मर्क्यूरी। क्यों इंक्रीज करता है एक्सरसाइज में, बिकॉज ऑफ द मेनी फैक्टर्स, बट इसमें जो मेन फैक्टर है वो इंक्रीज नंबर ऑफ ओपन कैपिलरीज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो याद रखिए कि कुछ कैपिलरीज जो है वो पहले डोरमेंट होती हैं, वो फिर ओपन हो जाती हैं, और जो पहले से ओपन होती हैं वो फर्दर मजीद ओपन होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें इसमें कितना था 20, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का इससे कितने गुना ज्यादा होना चाहिए, 20 टाइम्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो तकरीबन 400। So diffusion capacity of the respiratory membrane for carbon dioxide is 20 times more than that of oxygen. It is about 400 to 600 milliliter per minute per millimeter of mercury during rest and during exercise। जैसे ऑक्सीजन का इंक्रीज किया था तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंक्रीज कर जाता है तकरीबन 1300 मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीमीटर मर्क्यूरी। एक और फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो दिया हुआ है, वो आपकी है कि गैस परफ्यूजन लिमिटेड है या डिफ्यूजन लिमिटेड है। तो ऑक्सीजन नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये है परफ्यूजन लिमिटेड, ठीक। और ऑक्सीजन एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, स्ट्रेनोस एक्सरसाइज उसमें, और ये जो आपकी डिजीजेज हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज वेल एज रिस्ट्रिक्टिव एम्फीजिमा और फाइब्रोसिस, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये परफ्यूजन लिमिटेड के बजाय डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट गैस जो कि पॉइजनस है और उसकी आपने सुनी होगी पॉइजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी डिफ्यूजन लिमिटेड है। अब क्वेश्चन ये है कि इस परफ्यूजन लिमिटेड का और डिफ्यूजन लिमिटेड का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। परफ्यूजन लिमिटेड वो गैस होती है विच इक्विलिब्रेट्स अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। ये बिगिनिंग है, ठीक है, ये बिगिनिंग आप देख रहे हैं पल्मोनरी कैपिलरी की, ठीक है, और ये है एंड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये बिगिनिंग ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी पे भी ही सारी की सारी जो है इक्विलिब्रेट कर जाती है गैस, ठीक है। गैस जो है दोनों साइड्स पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के इक्विलिब्रेट कर जाती है। और डिफ्यूजन ऑफ गैस इस केस में इट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली इफ द परफ्यूजन इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई दीज गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड दे आर सेड टू बी परफ्यूजन लिमिटेड। उनकी डिफ्यूजन सिर्फ उस वक्त इंक्रीज करेगी अगर परफ्यूजन या ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके मुकाबले में ये जो गैसेस हैं डिफ्यूजन लिमिटेड, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में या डिजीज में, तो उसमें क्या होता है, गैस डज नॉट इक्विलिब्रेट। जस्ट थिंक ऑफ फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का आप थोड़ा सा सोचें, ठीक है। फाइब्रोसिस में क्या होगा कि एंड पे भी पहुंच गई है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई, एंड ऑफ कैपिलरी पे भी पहुंच गई है, लेकिन अभी तक इक्विलिब्रेशन नहीं हुई। ये शो कर रहा है कि यहाँ तक जब पहुंचता है एंड तक इक्विलिब्रेशन हो गई है। ये अभी देखें कितना डिस्टेंस पड़ा है, गैस इक्विलिब्रेशन नहीं हुई, फाइब्रोसिस हो गया, थिकनिंग हो गई है। इसी तरह एम्फीजिमा में, ठीक है। इसी तरह जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टेनोस एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों, ब्लड फ्लो इतना इंक्रीज कर गया, ठीक है, अब उसमें ये डिफ्यूजन लिमिटेड हो जाती है। तो ये एक और फैक्टर है जो कि इनकी गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करता है। जल्दी से हम ओवरव्यू ले लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का।
बहुत इजी है ये, ठीक है। वही प्रेशर्स की सारी गेम है, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की ऑक्सीजन की, पहले बात करते हैं। ऑक्सीजन एलवीएस में 104 थी, इधर वीनस ब्लड में कितनी थी, ये 40 थी, ठीक है। मिक्स वीनस ब्लड में 40 थी, 104 और 40 64 का तकरीबन ग्रेडियंट था। तो ये यहाँ की इक्विलिब्रेट कर गई, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी में। और इस ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऑक्सीजन ने मूव किया एल्वियस से पल्मोनरी कैपिलरी में, और यहाँ भी प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो गया। फिर जैसे ये ब्लड आगे जाता है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये फॉल करके 104 से 95 पे चला जाता है। क्यों चला जाता है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, टाइम कम है, लेकिन इसलिए मैं खुद इसका आंसर करता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली शंटेड ब्लड जो आपका ब्रोंकियल वेन से आ रहा है वो यहाँ पर मिक्स हो जाता है, जो कि अनऑक्सीजनेटेड होता है, वो भी लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये जब जो मिक्स वीनस ब्लड आपका आ जाता है, जो लंग के वस्कुलेचर से आ रहा है, वो इसको 104 को ड्रॉप करके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को 95 पे ले। तो हमारा जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी हम बात नहीं करते, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होता जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से आता हुआ टिश्यूज पे आ गया। अब टिश्यूज में इसकी अनलोडिंग होनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की लोडिंग हुई थी, यहाँ पर उसकी अनलोडिंग होनी है, इसमें टिश्यूज में जाना। अगेन पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में वही 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और टिश्यूज के अंदर तकरीबन ये हम कहते हैं 23 टू 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 95 से यहाँ आएगा 40 में, अगेन प्रेशर डिफरेंस देखें आप कितना ज्यादा है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर ये टिश्यू सेल्स में आ जाएगा, अगेन ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, टिश्यूज में आ जाएगा। अब 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज, ठीक है। 97 ऑक्सीजन की जो मेजर अमाउंट है वो इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज वो ट्रांसपोर्ट होती है, और सिर्फ 3% जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 97% इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनता है, और 3% जो है वो डिसॉल्व स्टेट में। लेकिन ये डिसॉल्व स्टेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये रीजन है, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है विद द हीमोग्लोबिन, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं ना। पता है कि जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फाइंड करेगी। अब ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट डिपेंड्स अपॉन द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो कम है, लेकिन जब तक डिसॉल्व्ड अमाउंट नहीं होगी, वो 3% की अब इंपॉर्टेंस देखिए आप कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डिसॉल्व्ड अमाउंट होगी उतना ज्यादा उसका गैस का पार्शियल प्रेशर बनेगा। इसको हम इसको समरी कर लेते हैं कि मोर इज द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, more will be the partial pressure of oxygen and more will be the binding of oxygen with the hemoglobin, ठीक है। तो अगर ये डिसॉल्व स्टेट ना हो तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी नहीं बनेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नहीं बनेगा तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी नहीं होगी। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी हम थोड़ा सा उसकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इट कैन कैरी मैक्सिमम 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस सूरत में अगर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी है पूरी तरह से, ठीक है। सो हम लेते हैं कि 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड में तकरीबन हम कहते हैं कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, ठीक है। एवरेज वैल्यू लेते हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड या 100 ml ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाइड बाय 1.34 जो कि एक उसकी कैपेसिटी है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.34 इट कम्स आउट टू बी 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, which means that each deciliter of blood, 100 ml of blood, it can carry maximum 20 milliliter of oxygen if the hemoglobin is 100% saturated at partial pressure of oxygen of 100 millimeter of mercury। लेकिन हमें पता है कि नॉर्मली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नहीं होता, वो कितना होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सॉरी 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उस पे हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ 97% सैचुरेटेड होती है, ठीक है ना, 97% सैचुरेटेड होती है हीमोग्लोबिन इस पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है।
97% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होती है, और उसमें ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड जो नॉर्मली कैरी करता है वो 19.4 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, कितने के बजाय 20 के बजाय। ईच 100 ml ऑफ ब्लड इट कैरीज 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टिश्यूज में कितना वो दे देता है ऑन पासिंग थ्रू द टिश्यूज, ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, वो उसकी जो रिडक्शन हो जाती है वो 14.4 मिलीलीटर की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 नहीं है, वहां पर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, जिसपे हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब है कि वहां पर ये 14.4 रहेगा। इसका मतलब कितना, उसने कितना दे दिया, ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड ने कितनी ऑक्सीजन दी, 19.4 minus 14.4 is equal to 5. So it means that about 5 milliliter of oxygen is transported from the lungs to the tissues by each deciliter or each 100 milliliter of blood. ठीक है ना, इसे हम कहते हैं 5 वॉल्यूम्स परसेंट। ठीक है, इसको फिजियोलॉजिकली से हम बोल सकते हैं 5 वॉल्यूम्स परसेंट ऑक्सीजन इज गिवन बाय ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। आपको पता है इट इज अ ग्राफ which shows the relationship between partial pressure of oxygen and percentage saturation of the hemoglobin. ठीक है, partial pressure of oxygen and percentage saturation of the hemoglobin. This graph shows us that at a particular partial pressure of oxygen, how much hemoglobin will be saturated with the oxygen molecule. ठीक है, ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसमें एक्स एक्सिस पे जो है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वाई एक्सिस पे हमारे पास हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है। नॉर्मली हमारे पास 90 और 100 के दरमियान 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो हमारा आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, उस पे हीमोग्लोबिन जो है वो 97% सैचुरेटेड होती है। ठीक है, तकरीबन 4 मॉलिक्यूल्स जो है हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो शेप है ये सिग्माइड शेप है, और वो सिग्माइड शेप क्यों है और इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी चीजें इसको राइट वर्ड शिफ्ट करती हैं, कौन सी चीजें इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करती हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, थोड़ा सा इसमें रह गया उसके में हम बात करेंगे और फिर साथ ही नर्व फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेंगे। मेरा ईमेल है dr